Okay. Yes, Darshan sir. Yes, Darshan sir. Yes. start करें जरा. Yes, Start yes. करें जरा. Yes, yes. I Okay. request all the I participants, request please all the mute your mic. participants, please mute Jolly your mic. Mehta. Johnny Mehta. Okay, so good morning, all the participants for the day two state level symposium, recent advances in the civil engineering. And today uh, we have the Magnet Projects team who is going to deliver the talk on opportunities for civil engineers in the field of interior work. I hope my voice is audible to every participants. So let me give some brief introduction about the company profile. The company was established in the year of 2009, headed by Mr. Chirag V. Shah. He is a young entrepreneur with abundant vision and has been specially appointed to develop the company in key areas. The company work in the sector of hospitality, commercial, industrial, and residential. The Magnet projects aim at being the project management consultancy PMC of choice by supporting its clients' objective and Objective. And consistency consistently delivering project with outstanding safety performance that meet cost, schedule and quality targets, enabling clients to experience a stress-free and maintenance-free construction. The vision of the Magnet project is to be a global organization delivering result-oriented, cost-effective, and project-specific solution to the clients for various nature, complexity, and magnitude of the projects, resulting in the maximum benefit realization to the client. They more than 100 projects as on date they have completed, and more than 20 ongoing, and they have more than 40 team members on the site and fully operating in house means office team. And basically their objective translates into the successful project management, and they give the service for the entire life cycle of the project to ensure that the clients can enjoy the approach which is given by the magnet company throughout the project. So on behalf of civil engineering department, Indian Society for Technical Education, and all the participants, I would like to welcome the team of magnet projects for delivering this topic of opportunities for civil engineering in the field of interior work, and accepted our invitation for delivering the talk in this crucial time period, COVID-19 pandemic. Now I request Jaivik Bhai to start the session. Yes, thank you, Darshan sir. Dingar. Hello. Now I request Dingar. Hello, Dingar. 1 minute, Darshan sir. Yes. Continue. Start the session. Hello. Am I audible, Javik? Yes, yes, yes. Clearly audible. Yes. Okay. Thank you. Thank you, Darshan sir. Warm welcome to all the faculty members and dear students from the Magnet Projects team. Today we are going to deliver the session on opportunities for civil engineers in the field of interior work. Basically, friends, civil engineering के बाद बहुत सारे field
में जॉब की अपॉर्चुनिटीज रहती है, तो उसमें से एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि इंटीरियर फील्ड के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट। पहले जैसे कि दर्शन सर ने हमारी कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया है, मैं हेलो Yes, you continue. Continue. ओके ओके। जैसे कि दर्शन सर ने बताया, हमारी कंपनी 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद हम लोग 90 प्लस प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुके हैं और अभी करंटली 20 अराउंड रनिंग है। मोर देन 10 लाख स्क्वायर फीट का सिविल वर्क एग्जीक्यूशन हम लोग कर चुके हैं, मॉनिटर कर चुके हैं। हमारी टीम में 50 प्लस मेंबर्स है, जिसमें से सिविल इंजीनियर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, ऑफिस स्टाफ, वो सब मिलाकर टोटल 50% की टीम है। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग दो काफ़ी फेमस स्टोरियां हैं वो बताना चाहूँगा। हम में से काफ़ी लोग क्रिकेट में रुचि रखते हैं, तो इसके लिए क्रिकेट पे ही दो एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा। फर्स्ट एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे ग्रैब करने का और उसको आइडेंटिफाई करने का क्या बेनिफिट मिलता है हमको, उसके रिगार्डिंग है। तो एम एस धोनी की स्टोरी आप सब लोग शायद जानते होंगे। उनकी जो स्कूल लाइफ थी, वो उनके स्कूल के फुटबॉल गोलकीपर थे। फिर उसके टाइम उनके स्पोर्ट्स कोच ने उनको ऑफर किया था कि आप क्रिकेट में विकेट कीपिंग करना चाहोगे। उस टाइम पे एम एस धोनी को लगा कि क्रिकेट में इंडिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है रादर देन फुटबॉल। और दूसरा रीज़न था कि जो स्कूल की क्रिकेट टीम थी, उनके पास केपेबल विकेट कीपर नहीं था। फिर एम एस धोनी ने अपने हार्ड वर्क से, अपने पैशन से वो अपॉर्चुनिटी को अपने करियर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया और काफ़ी काफ़ी सारा नाम कमाया, इंडियन टीम को लीड भी किया और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप्स भी जिताए। उसके बाद एक स्टोरी है फ्रेंड्स, अपने क्रिकेट के गॉड कहे जाने वाले अपने काफ़ी चहीते मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में। आप सब लोग शायद जानते होंगे कि 1989 में जब उनका डेब्यू हुआ था, फर्स्ट मैच उनका पाकिस्तान के सामने था। वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान की मैच काफ़ी हाई प्रोफाइल रहती है, और उसी सिचुएशन में जब सचिन ने डेब्यू किया, तब पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक था वो वन ऑफ द डेडलीस्ट बॉलिंग अटैक माना जाता था उस टाइम पे, जिसमें शामिल थे वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान जैसे काफ़ी बड़े-बड़े बॉलर्स शामिल थे। और वो लोग उस टाइम पे स्विंग और बाउंस का मतलब वो काफ़ी रुतबा रखने वाले बॉलर्स माने जाते थे। तो उस टाइम पे सचिन के साथ जब वो क्रीज पे उतरे, जब उनकी बैटिंग आई, तो उनके साथ में काफ़ी स्लेजिंग भी हुआ था। पहले ही उनको बोल दिया गया था कि आप रणजी क्रिकेट खेलिए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की अभी आपकी उम्र नहीं है। तभी भी सचिन ने उस कमेंट्स पे कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये अपॉर्चुनिटीज़ बार-बार आने वाली नहीं है। फिर जब उनकी इनिंग स्टार्ट हुई, तभी ड्यूरिंग द इनिंग्स उनको एक बॉल लगा था, उसको उनको इंजरी हुई थी। वो इंजरी को देखते हुए जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे मोहम्मद अजहरुद्दीन थे उस टाइम पे, तो उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि आप रेस्ट लेना चाहते हो तो रेस्ट ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है अभी आप खेलो, आप रिस्क मत लीजिए। तभी सचिन ने वो अपॉर्चुनिटी को जज किया कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से मैं जा नहीं सकता। तो उन्होंने उस टाइम पे एक स्टेटमेंट दिया था उनकी महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में कि मैं खेलेगा। मतलब कि उनको ये अपॉर्चुनिटी की इम्पोर्टेंस पता थी। तो फिर उन्होंने वो इनिंग्स कंटिन्यू की और उसमें उन्होंने 50 भी बनाई थी। वो उस टाइम पे एक यंगस्टर्स के द्वारा खेली गई काफ़ी फेमस इनिंग थी, और क्रिकेट के जो क्रिकेट क्रिटिक्स थे, उन सब ने वो इनिंग्स को काफ़ी प्रेज़ किया था, एप्रिशिएट किया था। तो फ्रेंड्स, ये था कि हम लोग अपॉर्चुनिटी को राइट टाइम पे ग्रैब करें तो उसका क्या बेनिफिट होता है, और राइट अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद उसकी वैल्यू करना, उसका इम्पोर्टेंस समझना, और उसमें अपने हार्ड वर्क से, अपने पैशन से उसको कैसे अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल था। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सिविल इंजीनियरिंग, बेसिकली आप सब लोग सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग मतलब एक जनरल लैंग्वेज में कहा जाए तो एक सिविक की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसका प्लानिंग एंड डिजाइनिंग,
उसका कंस्ट्रक्शन और उसका मेंटेनेंस। सिविल एक स्ट्रक्चर की जो भी एक लाइफ खत्म हो जाने के बाद उसका डिमोलिशन, वो सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग में आता है। एक कंपनी की लैंग्वेज में समझाऊं तो सिविल इंजीनियरिंग एक जो स्ट्रक्चर है उसका सीएमडी, यानी कि उसकी क्रिएट, उसको मेंटेन और उसको डिमोलिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। नेक्स्ट, अभी हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में, डे टू डे लाइफ में सिविल इंजीनियर्स का क्या रोल है, कितनी कितनी अहमियत रखता है सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड, उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे घर, हमारे कॉलेजेस, हमारे जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए हम लोग जो मॉल्स यूज करते हैं, गार्डन्स यूज करते हैं, उन सब का कंस्ट्रक्शन, उसका मेंटेनेंस सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग के द्वारा होता है। द ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वी यूज, हम लोग जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज करते हैं, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवेज हो, वो सब के बारे में, उन सब का डेवलपमेंट सब सिविल इंजीनियर्स करते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जहाँ पे हमारा हमारा घर है, हमारी ऑफिस है, जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, वहाँ पे जो वाटर पहुँचता है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, उन सब का डिजाइनिंग, उसका मेंटेनेंस सब सिविल इंजीनियर्स के देन है। ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम्स, हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उन सब को अपने प्रॉपर अंजाम तक पहुंचाना, उनकी प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्सरी ट्रीटमेंट्स करना, उन सब का जो नेटवर्क का डिजाइनिंग है और उसका एग्जीक्यूशन है, वो सब सिविल इंजीनियर्स देखते हैं। नेक्स्ट, ये है फ्रेंड्स की सिविल इंजीनियरिंग के बाद हम लोग कौन कौन सी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि आपको फर्दर स्टडी के लिए जाना हो तो कौन कौन सी फील्ड है। आप अपना स्कोप ऑफ वर्क कोई भी एक फील्ड में डिफाइन कर सकते हो। मोस्टली आप सब लोग जो स्क्रीन पे मेंशन की गई फील्ड्स है उन सब के बारे में जानते होंगे, लेकिन एक जो फील्ड है जो हाईलाइट की गई हुई है यहाँ पे, वो है इंटीरियर साइट एग्जीक्यूशन। इंटीरियर फील्ड में कितना पोटेंशियल है, आगे जाके वो कितनी ग्रो कर सकती है, उन सब के बारे में हमारी टीम में से मैं कृणाल प्रजापति को रिक्वेस्ट करूंगा कि इंटीरियर इंडस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन दे स्टूडेंट्स को। ओवर टू यू कृणाल। Okay. Thank you, Mr. Dingle. Hello, friends. Myself, Krunal Prajapati, a junior engineer from Magnet Projects. अभी जैसे कि हम सबको पता है, हम सिविल फील्ड के से रिलेटेड ही सब पर्सन है। तो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के अंदर, मतलब सभी इंजीनियरिंग ब्रांच के कंपेयर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज है। उसमें से हमारा आज का मेन कॉन्सेंट्रेट है इंटीरियर डिजाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटीरियर डिजाइन क्या है। सो इंटीरियर डिजाइन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ एनहेंसिंग द इंटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग टू अचीव अ हेल्दियर एंड मोर एस्थेटिकली प्लेजेंट एनवायरमेंट फॉर द पीपल यूजिंग दिस स्पेस। यानी कि जो भी मेन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होता है, इसके बाद इसका जो भी पर्पज से यूज होने वाला है, लाइक कमर्शियल, रेसिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, वॉटेवर, तो उनके बेसिस पे उसके अंदर जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो वो उसको टेक्निकली, लॉजिकली, प्रैक्टिकली, इन सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए एक इंटीरियर प्रॉपर डिजाइन होता है, तो उसको इंटीरियर डिजाइन कहते हैं। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि इंटीरियर कौन डिजाइन कर सकता है और कैसे कर सकता है। सो जो प्रोफेशनली आर्किटेक्चर्स होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं और वेल एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर, ये लोग एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन कर सकते हैं। अब जो भी इंटीरियर डिजाइन करता है, तो ड्यूरिंग द डिजाइन वो किन किन क्राइटेरिया को माइंड में रख के उसको डिजाइन करता है, उसके बारे में हम देखें तो है एलिमेंट्स ऑफ इंटीरियर डिजाइन। सो मेनली 7 एलिमेंट्स है जो ड्यूरिंग द इंटीरियर डिजाइन ध्यान में रखना है। फर्स्ट है स्पेस, लाइन, फॉर्म, लाइट, कलर, टेक्सचर एंड पैटर्न। उसके बारे में मैं थोड़ा नॉलेज दूँ आपको। तो स्पेस यानी कि लैंड, यानी कि जो भी एक जगह हमको मिलती है, स्पेस मिलती है, तो उसको मिनिमम स्पेस को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज करना है, वो क्राइटेरिया को ध्यान में रखते जो भी डिजाइन होती है, वो एक स्पेस का क्राइटेरिया है। अभी हम सबको पता ही है कि मुंबई जैसे बड़े शहर के अंदर लैंड के रेट कितने हाई है, किसी भी ऑर्डिनरी पीपल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो परचेस कर सके। और हमारा सूरत भी उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ
अभी हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है लाइन। लाइन यानी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो भी अरेंजमेंट है, उसका रूम्स होते हैं तो उसकी विड्थ, उसकी हाइट, अपीयरेंस ऑफ एक्टिविटी, हमारी मूवमेंट, फ्लो और इसी सबको रिप्रेजेंट करता है। लाइन ऑफ एक्शन की एक बेसिक थियरी को ध्यान में रखते हुए जो भी इंटीरियर है एक प्रॉपर डिजाइन होता है। नेक्स्ट है फॉर्म। तो फॉर्म यानी नथिंग बट एक शेप, जो बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं उसका जो शेप है, उसके जो अरेंजमेंट है, तो वो सब फॉर्म के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट है लाइट। लाइट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लाइट का जो अरेंजमेंट है वो एक इंटीरियर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। हमारे आसपास का एक मूड है, एक पैटर्न है, इसको भी एक अफेक्ट करता है। वो हमको एक फील देता है, यानी कामनेस है, कूलनेस है, एंग्री है। यानी प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक इंटीरियर के अंदर। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है कलर। कोई भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए एक प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के साथ, एक प्रॉपर कलर स्कीम के साथ, कलर पैटर्न के साथ प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन करते हैं, जो आपके इंटीरियर की ब्यूटी को इंक्रीज करता है, एस्थेटिकली एक प्रॉपर लुक देता है। नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर यानी कि जो भी फिनिशिंग सरफेस है तो उसको एक फील आता है। लाइक का एग्जांपल हम लें तो हमारे आसपास हम लोग क्यूजन, सोफा, बेडशीट वगैरह दिखते होंगे, तो उसको हम टच करेंगे तो कंफर्ट फील होता है। तो वो है एक टेक्सचर। तो टेक्सचर का एक प्रॉपर टोन, उसका वेटेज और उसका जो प्रोपोर्शन है वो एक इंटीरियर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट है पैटर्न्स। तो पैटर्न्स यानी क्या? तो परसेप्शन यानी कि दृष्टांश। द 2D पैटर्न्स, 3D पैटर्न्स है, टाइल्स का पैटर्न्स है, सीलिंग्स है, ग्रूव्स है, कारपेट्स है, तो ये सभी एक पैटर्न्स इंक्लूड है। अभी ये सभी एलिमेंट्स जो है, जो भी इंटीरियर डिजाइन करता है, तो ड्यूरिंग द डिजाइन इसका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं, दोनों सबको एक दूसरे के साथ एक प्रॉपरली कोरिलेट करके एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन देने की ट्राई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटीरियर इंडस्ट्री कैसे डेवलप हुई, कैसे इंट्रोड्यूस हुई, उसके बारे में। इन द रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज गॉन थ्रू significant changes regarding lifestyle, employment and migration from one place to another। यानी कि जैसे जैसे समय गुजरता गया, लोग क्या है कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए जो बड़े एम्प्लॉयमेंट हुई, सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो वहाँ से क्या हुआ कि सबका कल्चर का जो है वो एक थोड़ा ट्रांजेक्शन हुआ, इंटरचेंज हुआ, तो उसकी वजह से एक प्रॉपर इंटीरियर की डिमांड बढ़ी और इंटीरियर इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हुई। नेक्स्ट है इंडियंस आर नाउ गेटिंग फास्ट पेस्ड एंड आर डेवलपिंग टेस्ट फॉर हाई एंड लाइफस्टाइल। यानी अभी जो हमारा भारत देश का है वो एक टॉप और एक हाईएस्ट लाइफस्टाइल जीने के लिए एक कदम की ओर आगे बढ़ते हुए हमको आगे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट है अ गुड लाइफस्टाइल स्टार्ट विथ अ वेल डिजाइन होम। इंडियंस नाउअडेज वांट्स लग्जरी एंड कंफर्ट। अभी एक इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो सबसे मेन पॉइंट है लग्जरी एंड कंफर्ट। तो हम लोगों ने सुना ही होगा कि हमारे आसपास लोग बातें करते हैं कि हम एक लग्जरियस लाइफ जीने, कंफर्टेबल लाइफ जीने। तो ये लग्जरी एंड कंफर्ट है क्या? सबसे पहले हम जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका एक रूल्स है कि वो सबसे पहले एक सेफ होना चाहिए, देन सर्विसेबल होना चाहिए। तो कंफर्ट यानी क्या कि कंफर्टेबली हम उसको यूज कर सके, और लग्जरी यानी कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, मॉडर्न डिजाइन है, मॉडर्न पैटर्न्स है, उन सबको एक प्रॉपरली हाई स्टैंडर्ड लेवल पे यूज करने का और उसका एडवांटेज। नेक्स्ट है कि इंटीरियर इंडस्ट्री है जो उसका ग्रोथ बहुत ही रैपिडली हुआ, तो उसके कुछ रीजंस है, तो हम उसको थोड़ा देखते हैं। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अर्बनाइजेशन यानी लोग पहले, हमारे भारत देश पहले से कृषि प्रधान देश रहा है। लोग पहले गांव में रहते थे, फिर गांव से शहरों की ओर बढ़े, हाई एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए। तो उससे क्या हुआ कि लोग जब जैसे शहरों की ओर, राज्यों की ओर बढ़े, तो वहाँ से ज़्यादा उनको रहने के लिए जगह, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए। इसकी वजह से एक इंटीरियर इंडस्ट्री डेवलप हुई, उसका ग्रोथ हुआ। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर, यानी कि लोग एक राज्य तक ही सीमित नहीं थे, सिटी तक ही सीमित नहीं थे, लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने लगे, लोग वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस करने लगे। अभी हम सूरत की बात करें तो टेक्सटाइल और डायमंड, ये दोनों बिजनेस में वर्ल्ड वाइड डील करता है।
दूसरे देशों में अपना एक्सपोर्ट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, तो वहाँ की लाइफस्टाइल यहाँ लाने के लिए वो अपना एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन करने लगे। नेक्स्ट है ग्रोथ इन कस्टमाइजेशन एंड थीम बेस्ड इंटीरियर, यानी कि जो भी एक इंटीरियर है तो उसकी एक थीम है प्रॉपर, उसकी एक बेसिक पैटर्न से एक मैकेनिज्म है, तो उसका एक डेवलपमेंट होगा। अभी मार्केट में बहुत सारी इंटीरियर थीम्स, इंटीरियर स्टाइल जो है क्लाइंट्स उसकी रिक्वायरमेंट के डिमांड पे अवेलेबल है। इसमें से हम कुछ स्टाइल को थोड़ा गौर करते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल इंटीरियर स्टाइल। जैसे कि हम लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, एक ओल्ड एरा की लाइफस्टाइल जो एक लुक हो चुकी है, और उसको हाईलाइट करने के लिए लोग आजकल क्या है कि अपना एक घर है, एक इंटीरियर है, तो उसको इस लुक के बेसिस पे डिजाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग इमेज में देख पा रहे हैं कि जो भी वुड है वो कार्विंग है, जो एक पुराने समय की एक पहचान है हमारे भारत देश की, उसको एक हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। जैसा कि नाम है मॉडर्न, उसी तरीके से सभी चीज, सभी ऑब्जेक्ट्स को एक मॉडर्न टच दिया जाता है। इसमें कोई प्रॉपर स्टाइल या पैटर्न नहीं होती है। जो भी डिजाइनर होते हैं, जो भी क्लाइंट होते हैं, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एक हाई मतलब लेटेस्ट टच देने का ट्राई करते हैं, तो उसी हिसाब से एक मॉडर्न। नेक्स्ट है कंटेम्पररी होम डेकोर स्टाइल। कंटेम्पररी जो है वो जनरली मॉडर्न के जैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ओरिजिनलिटी को बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ओरिजिनलिटी पे ज्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल इंटीरियर डिजाइन। ट्रांजिशनल यानी कि ट्रेडिशनल और कंटेम्पररी दोनों का एक प्रॉपर मिश्रण है। अभी हम लोग जैसे इमेज में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा वॉल का बैकग्राउंड है, जो फर्नीचर है, उसका कलर है, उसको कैसे हाईलाइट किया गया है, उन पे कैसा फोकस किया है। सो नेक्स्ट हमारा इंटीरियर डिजाइन है मिड सेंचुरी मॉडर्न डिजाइन स्टाइल। जैसा ही नाम है मिड सेंचुरी, यानी कि 90s के टाइम में मॉडर्न प्लस कंटेम्पररी दोनों का एक प्रॉपर मिश्रण है। अभी जो भी डिजाइनर्स है इंटीरियर, जो प्रोफेशनल आर्किटेक्चर्स है, वो एक अपना खुद का टच देते हैं, प्रॉपर प्रपोजल को मिक्स करते हुए एक मिड सेंचुरी मॉडर्न डिजाइन स्टाइल को हाईलाइट करते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। जैसा कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम लोग एक प्रॉपर अपना इंटीरियर में मांगते हैं, ये लुक देते हैं, यानी कि फ्लैट रूफ्स है, ब्लैक फ्रेम्स है, जो टेक्सचर है, एक्सपोज टाइप का स्टाइल है, तो ये सब इंटीरियर डिजाइन के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट है मेडिटेरियन इंटीरियर डिजाइन स्टाइल। अभी मेडिटेरियन डिजाइन स्टाइल जो है वो जनरली जो यूएसए, स्पेनिश, इटालियन, अरेबिक, वेनेशियन, पेरिस, ये सब जो कंट्रीज है वहाँ की लाइफस्टाइल को एक हाईलाइट करने का जो स्टाइल है उसको मेडिटेरियन लाइफस्टाइल कहते हैं। इसके अंदर जनरली क्या है कि कूलिंग कलर्स है, ब्राइट कलर्स है, बैकग्राउंड्स है, उसमें ज्यादा फोकस किया जाता है। अभी ये हो गया डिफरेंट लाइफस्टाइल। अभी इनसे भी ज्यादा जो भी पैटर्न्स हैं इंटीरियर की वो मार्केट्स में अवेलेबल है। जैसे जैसे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, जैसा बजट है, फाइनेंस कंडीशन है, उनके डिपेंड पे अलग अलग डिजाइन मार्केट में अवेलेबल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर डिजाइन सेक्टर जो है हमारे भारत के अंदर वो बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रहा है, तो उसके रिगार्डिंग some डेटा है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन मार्केट बाय 2025। मतलब 2025 तक भारत का जो कंस्ट्रक्शन मार्केट है वो पूरे विश्व में तीसरे पायदान पर आ सकता है, ऐसी एक संभावना है, जो एक प्रिडिक्शन है, एक्सपर्ट्स का मानना है। टू बी मोर प्रीशियस, देयर आर ओवर 11 मिलियन होम्स एक्सपेक्टेड टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय 2025। यानी कि 2025 तक 11 मिलियन नए होम्स का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। यानी एज सिविल इंजीनियर इस फील्ड के अंदर, इंटीरियर फील्ड के अंदर बहुत ही ज्यादा जॉब के स्कोप्स है। In 2021, the country's furniture market is projected to grow at a CAGR of around 26%. हमारे भारत का जो फर्नीचर मार्केट है वो पूरे विश्व में फेमस है। हमारे जो कार्विंग वुड्स है, जो ओरिजिनलिटी है, तो वो एक पूरे वर्ल्ड में डिमांड है उसका। और अभी हम लोगों ने जैसे देखा है कि इंडियन मार्केट्स की डिमांड अभी पूरे विश्व में बढ़ने जा रही है, तो ये सेटिस्फाई होता हमको दिख भी रहा है, जो पूरे इंडिया का 26% में डोमिनेट कर सकते। नेक्स्ट हम लोग फील्ड में काम करते हैं,
तो जो भी लोग अपना एक स्ट्रक्चर लेते हैं उसमें एक इंटीरियर डिजाइन करवाते हैं, सिविल वर्क्स करवाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग सब डेटा है कि लोग कितना खर्चा अपने घर के अंदर है, कितना खर्चा करते हैं। तो एक एरिया का हम लोगों ने एकदम लोएस्ट एरिया एक सर्वे किया है, तो उसके अंदर जो भी एक समझ लो हाई रेस बिल्डिंग के अंदर हमको 2 BHK या 3 BHK फ्लैट लेते हैं, तो उसमें जो एक लैंड मिलती है हमको एक फ्लैट, तो उसका जो स्क्वायर फीट का रेट है वो अभी 6000 से लेकर के उतना अराउंड चलता है। उसके अंदर लोग पार्टीशन वॉल्स करवाते हैं, अलग अलग सिविल वर्क्स थोड़े करवाते हैं, तो उसके अंदर लोग 1500 रुपये तक का खर्चा पर स्क्वायर फीट करते हैं। अभी उसके अंदर एक प्रॉपर इंटीरियर डिजाइन होता है, प्रॉपर इंटीरियर प्रोवाइड होता है, तो उसके अंदर लोग 3500 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का खर्चा करते हैं, बराबर। तो उसके हिसाब से एक वेटेज है कि लोग 55% कॉस्ट अपने लैंड में इन्वेस्ट करते हैं, और बाकी का जो भी है वो सब वो इंटीरियर और उसके अंदर जो वर्क करवाते हैं उसके अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। यानी जस्ट इमेजिन कि लोग लैंड से ज़्यादा उसके ऊपर जो इंटीरियर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें इन्वेस्ट करता है और ज़्यादा फोकस करता है। और अभी मार्केट में जो भी वर्क चल रहे हैं तो उसका एक ब्रेकडाउन सिनारियो है कि हमने जो एनालिसिस किया है, गूगल फैक्ट से डेटा कलेक्ट किया है, और उसके हिसाब से मैं हम थोड़ा शेयर करता हूँ कि 7% साइट मार्केट में भी ऐसी है जिसका साइट वर्क चल रहा है, 11% साइट ऐसी है जिसका फाउंडेशन या एक्सकेवेशन वर्क चल रहा है, 18% साइट ऐसी है जिसका फ्रेमिंग वर्क यानी कि मैशनरी वर्क है, पार्टीशन वॉल से और चंटर वगैरह सब चल रहा है। नेक्स्ट है 14% साइड ऐसी है जो एक्सटीरियर यानी कि उसका एलिवेशन वर्क चल रहा है। मेजर सिस्टम में 14% साइड यानी कि स्ट्रक्चरल जो मेन कंपोनेंट है उसका वर्क अभी चल रहा है। अभी इंटीरियर फिनिश 29% साइड ऐसी है जो इंटीरियर का वर्क चल रहा है। यानी फाइनल स्टेप पे 7% साइड से यानी कि जो फिनिशिंग हो चुकी है और पोजीशन के लिए रेडी है। यानी जस्ट इमेजिन कि इंटीरियर के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है, इंटीरियर वर्क में लोग कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अभी इंटीरियर फील्ड की बात हो गई, तो इन फ्यूचर हमको क्या बेनिफिट होने वाला है, तो एक गोल्डन पीरियड कहा जाने वाला है इंडिया के लिए कि जो अभी का जो टाइम है वो इंटीरियर फील्ड के अंदर कैसे एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लेके आने वाला है। एम्प्लॉयमेंट इन इंटीरियर इंडस्ट्री इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो 4% फ्रॉम 2018 to 2028 about as fast as average for all occupation। यानी 2018 से लेकर 2028 का जो एरा है, एक दशका है, तो उसके अंदर इंटीरियर जो फील्ड है उसको 4% फास्टेस्ट ग्रो है किसी और बिजनेस के, किसी और ऑक्यूपेशन से कंपेयर में। Interior designers will be needed to respond to consumer expectation that the interior of structure meet certain condition। यानी जो भी डिजाइनर्स है वो एक कस्टमर की जो भी कंडीशन है, उसकी डिमांड है, उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको फुलफिल करने के प्रॉपर ट्राई करते हैं। This type of interior will have the requirement of technical person to give qualitative output so that the design should be carved out from the computer to real world। अभी जो भी डिजाइनर्स है वो ऑन डिजिटल मीडियम यानी ऑन कंप्यूटर एक प्लान से एक लेआउट वो रेडी करते हैं। अभी ऑन साइट उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक टेक्निकल सुपरवाइजर, एक टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक सिविल इंजीनियर के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उस प्लान को जो लेआउट है उसको ऑन पेपर से ऑन फील्ड ला सके। नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर सिविल इंजीनियर्स इन इंटीरियर फील्ड। अभी आपने सिविल इंजीनियरिंग तो स्टडी कर लिया, बराबर। तो इंटीरियर फील्ड में अगर आपको आना है तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या आपको तक है, जो चांस है इसमें आप वर्क कर सकते हो, तो इसके रिगार्डिंग में बात करूँ। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज ए इंटीरियर डिजाइनर। अभी आप इस फील्ड में काम करोगे, एक्सपीरियंस लोगे, थोड़ा बड़ा आपका नाम होगा, उसके बाद आप एज अ इंटीरियर डिजाइनर वर्क कर सकते हो। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद आर्किटेक्ट। आप आर्किटेक्ट के साथ एज अ ड्राफ्टमैन ऑन साइट वगैरह आप वर्क कर सकते हो। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क एज अ PMC यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर इंटीरियर प्रोजेक्ट्स। जो इंटीरियर प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर आप एज अ PMC वर्क कर सकते हो। यू कैन वर्क एज अ टर्नकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशनर, यानी जो टर्नकी प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर आप वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ इंटीरियर वर्क्स। अभी जो इंटीरियर फील्ड का नॉलेज है वो आपको अगर हो तो आपको क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं।
उसका बेनिफिट आप ऑन साइट पे कैसे ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सम डिटेल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ. There are several activities which have to be done in order after one another in the interior work which has to be taken care on site. यानी ऑन साइट पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, उसका एक वर्क ऑर्डर होता है, एक वर्क पैटर्न होती है, वर्क सीक्वेंस होता है. तो जो भी एक साइट इंजीनियर है, अगर उसको इंजीनियर का प्रॉपर नॉलेज है तो उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकता है और एक प्योर इंटीरियर आपको प्रोवाइड कर सकता है. In addition to that, several provision has to be done at the time of construction of bungalow building, which you can take care if you have knowledge of interior work. भी आप कोई भी वर्क करोगे, कोई भी डिफरेंट वर्क करोगे, तो ड्यूरिंग द वर्क आपको बहुत सारे इश्यूज हो गए, प्रॉब्लम्स हो गए. ऑन साइट मेजरमेंट्स जो है वो प्लान्स के कंपेयर में डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो वो सब चीजें अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है प्रैक्टिकली, तो आप प्रॉपरली एक इंटीरियर को वर्क कर सकते हो. Knowledge always helps you during any type of interior work at your house, as we all go through that phase when we have to perform the role of designer as well as engineer. भी आपको इंटीरियर फील्ड का एक नॉलेज है, तो आप क्या है एज ए डिजाइनर, एज एग्जीक्यूशनर, एज ए सुपरविजन, एज ए टेक्निकल इंजीनियर, आप एक अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हो और सिविल इंजीनियर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको प्रॉपरली फुलफिल कर सकते हो. अभी इंटीरियर फील्ड का हमने थोड़ा बेसिक नॉलेज लिया. अभी इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज वर्क करती है, इस मीडियम से हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, तो इसके रिगार्डिंग मैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर मिस्टर चिराग सर को इनवाइट करता हूँ कि वो आगे की जो डिटेल्स है उसको शेयर करें. सो प्लीज चिराग सर. थैंक यू कृणाल. मिस चिराग शाह. अभी जैसे कि कृणाल ने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर की. मैं जस्ट उसमें एक एड ऑन करना चाहता हूँ. मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ कि इंटीरियर फील्ड में क्यों अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है. जैसे कि आप समझ लो एक हाई राइज प्रोजेक्ट है. एक हाई राइज प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करने के लिए ज़्यादातर 2 से 3 इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है. एक प्रोजेक्ट इंजीनियर, एक सीनियर इंजीनियर और एक जूनियर इंजीनियर. लेकिन एक हाई राइज बिल्डिंग बनने के बाद उसमें आप समझ लो कि एक हाई राइज स्टोरी को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 13 स्टोरी का है. तो हेलो, आई एम ऑडिएबल? हेलो. Yes. ओके. तो एक हाई राइज प्रोजेक्ट 13 स्टोरी का होता है. मैं एक फ्लोर पे ऐसा समझता हूँ कि 2 फ्लैट बन रहा है. यानी ज़्यादा आप देखोगे कि एक फ्लोर पे 4 फ्लैट भी होते हैं, लेकिन मैं 2 फ्लैट का ही कंसिडरेशन कर रहा हूँ. तो 13 इंटू इज इक्वल टू 26 फ्लैट, यानी 26 फ्लैट बन रहा है. अभी आप 26 फ्लैट में से भी समझ लोगे कि 50% लोग इंटीरियर करवा रहे हैं, तो आप समझोगे कि 13 फ्लैट का इंटीरियर हो रहा है. और 13 फ्लैट का इंटीरियर हो तो आप एक फ्लैट के लिए एक इंजीनियर कंसिडर करोगे तो 13 इंजीनियर होगा, और 2 फ्लैट के बीच में एक इंजीनियर कंसिडर करोगे तो 6 इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होगी. यानी डबल देन सिविल प्रोजेक्ट. यानी सिविल प्रोजेक्ट से इंटीरियर में ट्वाइस ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यानी डबल रिक्वायरमेंट है. एक हो गया एग्जांपल कि भाई क्यों, उसका मैंने जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया. सेकंड चीज, इंटीरियर में 2 फील्ड है, एक डिजाइनिंग फील्ड और एक एग्जीक्यूशन फील्ड. डिजाइनिंग फील्ड में अभी ज़्यादातर आपको कंपटीशन मिलेगी. डिजाइनिंग का काम आर्किटेक्ट भी करता है, इंटीरियर डिजाइनर भी करता है, और कोई सिविल इंजीनियर भी डिजाइन का काम करता है. लेकिन एग्जीक्यूशन फील्ड अभी तक ज़्यादातर वो नॉन टेक्निकल पर्सन से हैंडल होती थी. वो पूरी फील्ड ऐसे ही पड़ी है, यानी उसको किसी ने टच भी नहीं किया, ऐसा बोल सकते हैं. जो आज की कंपटीशन में वहाँ कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है. और वहाँ पे अभी टेक्निकल पर्सन की रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा है, उसके रिगार्डिंग मैं अभी थोड़ा आपको नॉलेज शेयर करूंगा कि एग्जीक्यूशन फील्ड में नॉन टेक्निकल पर्सन से टेक्निकल पर्सन क्यों बेटर है और वो क्लाइंट को कैसे फायदा करवा सकता है. तो आने वाला जो अभी आगे वाला सेशन है उसमें हम लोग सारी इस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे. अभी आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे आपको दिख रही है कि मल्टीपल वॉइसेस नॉट हियर. हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जैविक? Yes, voice is clear. આવે છે आ रही है. ओके. तो अभी आप हाँ, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो. हेलो, स्क्रीन पे देख रहे हो नंबर ऑफ एजेंसीज. जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो टोटल 20 एजेंसी और 20 वेंडर के नाम लिखे हैं, यानी टोटल 40 लोग मिलके एक इंटीरियर की साइट को हैंडल करते हैं. जैसे कि सिविल एजेंसी है, प्लम्बिंग एजेंसी, इलेक्ट्रिकल एजेंसी है, फ्लोरिंग एजेंसी है.
तो ऐसे आप टोटल गिनती करोगे तो टोटल 40 लोग मिलके एक इंटीरियर की साइट को हैंडल करते हैं। यानी जहाँ पे सिविल की साइट हो तो हार्डली 5 से 6 इंजीनियर होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर और दो 3-4 सप्लायर जैसे कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और स्टील के। लेकिन इंटीरियर में पूरा उल्टा है, यानी पे नंबर ऑफ एजेंसी और नंबर ऑफ वेंडर एक साथ में मिलके काम करते हैं। अभी पहले क्या था कि इंटीरियर का जो सेगमेंट था वो लो बजट था, यानी हार्डली लोग 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख तक के इंटीरियर करवाते थे। आज सीनेरियो अलग हो गया, जैसे कुणाल भाई ने आपको समझाया। आज 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ लोग इंटीरियर में डाल रहे हैं। तो में हो रहा है, कितने लग्जरियस होटल बन रहे हैं, कितने लग्जरियस हॉस्पिटल बन रहे हैं। आप सभी जगह पे देखोगे तो इंटीरियर का सेगमेंट की डिमांड बढ़ रही है। उस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे टेक्निकल पर्सन या तो बहुत सारे टेक्निकल पर्सन मिलके एक फॉर्म बनाते हैं, जैसे हम लोग पीएमसी चला रहे हैं वैसे पीएमसी की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जैसे कि एग्जीक्यूशन में क्यों इतनी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप समझो कि जब नंबर ऑफ पर्सन बढ़ेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिविटीज की ज़्यादा होगी। तो जो एक्टिविटीज होती है उसमें सीक्वेंस भी हमको बहुत केयरफुली ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक सीक्वेंस के पीछे एक एक्टिविटी डिपेंड होती है। जैसे कि मुझे फ्लोरिंग करना है तो फ्लोरिंग के पहले हमको इलेक्ट्रिक के कंड्यूट्स डालने होते हैं, एसी की ड्रेनेज लाइन डालनी होती है। इसमें से कोई भी चीज़ मेरी रह गई और मैंने फ्लोरिंग कर दिया तो क्या होगा, क्लाइंट का बहुत कॉस्ट जाएगा, यानी वेस्टेज ऑफ मनी होगा। अभी जैसे कि पहले तो क्या था, लोग टाइल्स लगवाते थे या नेचुरल स्टोन लगवाते थे जिसकी हार्डली कॉस्ट 25 to 50 रुपीज कॉस्ट होती थी। लेकिन आज लोग घरों में इटालियन लगाने वाला लग रहा है तो उसकी कॉस्ट क्या है, करीबन 250 रुपया से तो चालू होती है पर स्क्वायर फीट। तो आप समझ लो कि 2000 फुट का भी घर होगा या 1000 स्क्वायर फीट का भी घर होगा तो 250 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2.5 लाख रुपया तो वहीं हो जाता है, और वो फ्लोरिंग मुझे तोड़ना पड़ेगा तो क्लाइंट को कितनी कॉस्ट ऊपर जाएगी। अभी मैं जैसे एक एग्जांपल जो आज मैं एक जैसे कि फ्लोरिंग की एजेंसी है तो उसमें टेक्निकल क्या क्या पार्ट हम लोग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, पोस्ट एग्जीक्यूशन और आफ्टर एग्जीक्यूशन हम लोग ध्यान में रखते हैं वो समझाने जा रहा हूँ। चेकलिस्ट प्लीज जैविक। ओके, जैसे कि साइट चालू होता है, अभी मुझे फ्लोरिंग का काम करना है तो हमारा इंजीनियर जो साइट पे होता है वो क्या क्या चेकलिस्ट ध्यान में रखता है जो नॉन टेक्निकल पर्सन कभी नहीं रख सकता, जिसमें उसको समझा रहा हूँ। चेकलिस्ट नहीं दिख रहा है जैविक? ओके ओके, अभी यहाँ पे देखा है, आप देखो आइटम डिस्क्रिप्शन, यानी जितनी आइटम्स हमको ध्यान में लेनी है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, पोस्ट एग्जीक्यूशन और आफ्टर वो मेंशन किए हुए, उसका स्टेटस है और रिमार्क्स है। अभी जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है, इज द लेआउट मार्किंग एंड फ्लोर लेवल्स वेरीफाइड, यानी जब आर्किटेक्ट के वहाँ से ड्राइंग आया तो ड्राइंग को हमको साइट के मेजरमेंट के हिसाब से चेक करना है। जैसे कि हमारा जो रूम है, लिविंग रूम है, वो 15 फीट 9 इंच का है और आर्किटेक्ट के वहाँ से 16 फीट आया है। जो आप 16 फीट के हिसाब से प्लानिंग कर दोगे तो आपका मटेरियल वेस्टेज होगा। यानी आपको पहले से ही मेजरमेंट चेक करके ड्राइंग में पर्टिकुलर करेक्शन करवा के आपको वो मेंशन करा है, क्योंकि जैसे कि मैं आज तो 16 फीट के हिसाब से 8 टाइल्स आएगी और 15 फीट के 9 इंच के हिसाब से वहाँ 3 इंच का पीस कट होगा। तो आपको जो पहले से प्लानिंग करना है वो 3 इंच का पीस कहाँ आपको यूज करना है, जिससे क्लाइंट का मटेरियल भी बचे और पैसा भी बचे। दूसरा सब्जेक्ट है कि भाई फ्लोर लेवल्स वेरीफाइड, यानी आर्किटेक्ट ने लेवल दिया होता है कि भाई मुझे फ्लोरिंग लेवल में लगाना है। जैसे कि टॉयलेट एरिया है तो वहाँ स्लोप देना पड़ता है, जहाँ अपनी जाने का निकाल होता है वहाँ अपने को पूरा स्लोप ले जाना है। तो स्लोप कितना रखना है, 1 इंच रखना है, 2 इंच रखना है, 3 इंच रखना है। जिस हिसाब से आर्किटेक्ट ने ड्राइंग में लेवल दिया है उसके हिसाब से पहले हमको नोंद मरवानी होती है, यानी जिसको हम टीपी भी बोलते हैं। और नोंद मरा के हमको चेक करनी होती है कि नोंद भाई जो एजेंसी ने लगाई वो सही है कि नहीं। सेकंड पॉइंट इज द सब इज क्लीन बिफोर टेकिंग अप द लेइंग ऑफ स्क्रीड। उसका मतलब ये है कि जब आप इंटरनल प्लास्टर होता है, यानी जैसे कि आपका बंगलो हो, हाईराइज प्रोजेक्ट हो, तब अंदर का प्लास्टर जब होता है तो प्लास्टर का माल नीचे स्लेब पे गिरता है। चाहे वो लेबर कितना भी क्लीन करे तो भी थोड़ा बहुत माल रह जाता है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से वो इसको क्लीन नहीं करता है। तो जब हमको फ्लोरिंग का काम स्टार्ट करना है तो उसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। हम क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो मदर स्लेब है अपना, उससे अपना जो फ्लोरिंग का जो स्लीड है उसका बॉन्डिंग नहीं होगा। इसलिए स्लेब को पहले क्लीन करना है। स्लेब के जो भी चीज वहाँ पड़ी है, जो एक्स्ट्रा चीज है, उसको वहां से हटानी होगी। थर्ड पॉइंट इज आर द मटेरियल ग्रेड्स एज पर द स्पेसिफिकेशन, यानी जैसे कि कोई भी एक्टिविटी चालू करनी तो उसका एक प्रॉपर आईएस कोड के हिसाब से उसके स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया जाता है। जैसे कि जितना अभी पार्किंग एरिया है तो वहाँ स्ट्रीट का जो डिजाइन होगा उसका प्रोपोर्शन क्या होगा वो अलग रहेगा, और जो अपना लिविंग रूम है वहाँ पे स्ट्रीट का प्रोपोर्शन अलग रहेगा। जैसे कि घरों में हम लोग ज्यादातर 1/6 का स्क्रीड करवाते हैं और पार्किंग वगैरह में 1/4 का स्क्रीड करवाते हैं। 1/6 और 1/4 शायद आप सब जानते हो, लेकिन थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। जिसमें 1/6 यानी 1 पार्ट सीमेंट का और 6 पार्ट सेंड का, और 1/4 यानी 1 पार्ट सीमेंट का और 4 पार्ट सेंड का।
तो अपने जो स्पेसिफिकेशन डिसाइड किए, अभी जैसे कि उसमें विट्रीफाइड टाइल्स है, सिरामिक टाइल्स है, पोर्सेलिन टाइल्स है, तो जो भी हमने मटेरियल के स्पेसिफिकेशन डिजाइन किए उस हिसाब से मटेरियल काम होने वाला है, एजेंसी को मालूम है, वो हमको चेक करना है। आर द कंड्यूट रेसवे एंड जंक्शन बॉक्सेस लेट एज पर द रिक्वायरमेंट। मैंने जैसे आपको बताया फ्लोरिंग करने से पहले हमको इलेक्ट्रिक के कंड्यूट्स डालने होते हैं, एसी की ड्रेन लाइन डालनी होती है। तो जो कंड्यूट्स डालने हैं और जो जंक्शन बॉक्सेस जहाँ पे अपने को रखना है वो इस हिसाब से है कि नहीं, वो हमको चेक करना होता है। फास्ट इज द लेवल ऑफ द रेसवे एंड जंक्शन बॉक्सेस वेरीफाइड। लेवल क्यों हमको वेरीफाइड करना है? जो इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्टर है जब कंड्यूट डालेगा तो हमारा जैसे कि माचड़ की डेप्थ 3 इंच है या 4 इंच है, तो उसको कंसीडर करके डालना पड़ता है, क्योंकि जो नहीं डालेगा, जो हमारा 3 इंच यानी हमारा 3 इंच का थिकनेस का स्क्रीड है, तो टॉप लेयर पे डाल देगा, तो जहाँ उसके ऊपर जो भी फिनिशिंग मटेरियल आएगा, टाइल्स आएगा या इटालियन आएगा, वो पाइप के ऊपर डायरेक्ट चिपकेगा। तो क्या होगा कि जब भी उसके ऊपर कोई चीज गिरेगी या कोई इम्पेक्ट आएगा तो वहां से वो क्रैक हो जाएगा। इसलिए हमको ज्यादातर ध्यान रखना होता है कि जब भी कंड्यूट डाल दिए उसके बाद सफिशिएंट डेप्थ का हमको स्क्रीड उसके ऊपर मिलना चाहिए, जैसे कि फ्यूचर में कोई भी इम्पेक्ट उस पर आए तो वो चीज ब्रेक नहीं हो या क्रैक नहीं आए। अभी जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन हमको जो ध्यान में रखना है उसके पॉइंट है, इज द स्क्रीन बीइंग डन यूनिफॉर्मली। कोई बार क्या होता है, जो अनस्किल्ड लेबर है तो उनको मालूम नहीं होता कि स्क्रीड का इंपॉर्टेंस क्या होता है। उनको इतना ही मालूम होता है भाई सैंड और सीमेंट को प्रोपोर्शनली वेल मिक्स करना है, लेकिन कोई बार वो भूल जाते हैं, कोई बार उनकी बेदरकारी से वो ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई सीमेंट का लेयर नीचे हो गया, सैंड का लेयर ऊपर हो गया, या सैंड का लेयर नीचे हो गया, सीमेंट का लेयर ऊपर हो गया, प्रॉपरली मिक्स नहीं करता और ऐसा लेयर डिफाइंड हो जाता है, तो क्या स्ट्रेंथ नहीं आती है। दूसरा, कोई बार ऐसा होता है कि भाई साइड पे क्या है, शाम को माल बनाए और कोई वजह से काम डिले हो गया, तो वो पूरा स्क्रीड बिछा के ऐसे ही चले जाते हैं, दूसरे दिन आते हैं, दूसरे दिन आएंगे तो क्या करेंगे, जो स्ट्रीट यूनिफॉर्मली बिछा है उसमें पानी नहीं डाला होता, पानी डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर का जो सीमेंट के पार्टिकल्स है वो पानी के साथ नीचे चले जाएंगे, सेंड का पार्टिकल ऊपर से आ जाएगा और सीमेंट का लेयर नीचे बन जाएगा। तो जब आप फ्लोरिंग लगाओगे तो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, थोड़े टाइम में वो बोदा बोलने लगेगा। तो वो सब फैक्टर्स हमको जब साइट एग्जीक्यूशन हो रहा है तब ध्यान में रखने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इज द मिक्स ऑफ द स्क्रीड एज पर द स्पेसिफिकेशन। जैसे मैंने आगे बताया कि जो 1/6 हमने डिसाइड किया या 1/4 है, उसके हिसाब से वो प्रोपोर्शन बनाए कि नहीं वो चेक कर लेना होता है। अभी एग्जीक्यूशन होने के बाद हमको क्या क्या पॉइंट देना है। इज द लेवल ऑफ द फिनिश फ्लोर बीन चेक बिफोर द सेटिंग ऑफ द स्क्रीड। आप जानते हो कि भाई स्क्रीड में सीमेंट पार्टिकल्स हमने यूज किए तो उसका एक सेटिंग टाइम होता है। तो सेटिंग टाइम होने से पहले हमको चेक कर लेना है कि भाई जो हमने फ्लोरिंग बिछा है वहाँ कहीं गलती नहीं रह गई, कोई जगह पे कोई ओठा नहीं रह गया। ओठा यानी दो पत्थर जब साथ में ज्वाइंट करते हैं तो कोई किनारा ऊपर रह गया, कोई किनारा नीचे चला गया, वैसा तो नहीं हुआ। क्योंकि जब तक सेटिंग टाइम होने के बाद वो हम लोग चेक करेंगे तो फ्लोरिंग हमको तोड़ना पड़ेगा, बाद में हम लोग उसको अच्छी तरह से लेवल में नहीं कर पाएंगे। या तो कोई चीज़ हम लोग भूल गए गलती से, तो सेटिंग टाइम होने से पहले हम उसको वापस निकाल के डाल सकते हैं, और जो सेटिंग टाइम हो गया तो वो चीज़ हमको बाद में तोड़ के डालनी पड़ेगी। इज द फिनिश फ्लोर बीइंग क्योर्ड एडिक्वेटली। आफ्टर फ्लोरिंग होने के बाद उसका जो क्योरिंग करना होता है वो हम बराबर कर रहे हैं कि नहीं, वो हमको ध्यान में रखना होता है। इज द लेवल ऑफ द जंक्शन बॉक्स इज इन लाइन विद द फिनिश फ्लोर लेवल। जैसे आर्किटेक्ट ने प्लान में दिया है या इंटीरियर डिजाइन ने प्लान में दिया है कि जो इलेक्ट्रिक इस तरह से इस मेजरमेंट से आना चाहिए, वो मेजरमेंट से साइट पे एग्जीक्यूट हुए कि नहीं वो हमको देख लेना होता है। तो इस तरह से फ्लोरिंग के इतने सारे पैरामीटर्स होता है जो कोई नॉन टेक्निकल पर्सन ध्यान रख सकता है, तो स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट का ध्यान रख सकता है। लेकिन जब बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है तो मैं नहीं मानता कि इसमें कोई नॉन टेक्निकल पर्सन इसको अच्छी तरह से वॉच कर पाए या क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी दे पाए या उसका पैसा बचा पाए। अभी मैं जस्ट एक और एग्जांपल लेता हूँ कि भाई एक इटालियन पत्थर होता है, तो इटालियन पत्थर में हमको लगाने से पहले उसमें क्या क्या चीज ध्यान में रखनी होती है। जैसे इटालियन पत्थर दो कलर, एक लाइट कलर और एक डार्क कलर। लाइट कलर में ज्यादातर हम लोग व्हाइट कलर बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। तो जब व्हाइट कलर प्रीफर करते हैं तो क्या होता है, उसके पहले जैसे कि नीचे सेंट पार्टिकल्स में कभी कभी आयरन पार्टिकल्स आ जाते हैं। अभी वो आयरन पार्टिकल्स का जो स्पॉट है वो ऊपर व्हाइट मार्बल में ऊपर आ जाता है। जो इसके लिए हमको क्या प्रिकॉशन लेना है कि उसके पहले हमको कोई ऐसा वाटर केमिकल या कोई केमिकल उसके नीचे अप्लाई करना है कि जिससे वो आयरन पार्टिकल्स की केमिकल रिएक्शन होके वो जो स्पॉट है अपने ऊपर वाले पत्थर पे नहीं आए। तो ये सब चीज इतनी माइनर रखती है कि भाई क्लाइंट को प्रॉपर क्वालिटी के देने के लिए और क्लाइंट का पूरा पैसा बचाने के लिए, या तो क्लाइंट ने जो मनी उसमें यूज किया है, जैसे कि भाई 1 करोड़ रुपया यूज किया है तो 1 करोड़ रुपये का वर्थ उसको मिले, उसके लिए ये सारे फैक्टर्स हमको ध्यान में रखते हैं। तो मेरे हिसाब से टेक्निकल पर्सन ही ये ज्यादातर इसकी केयर कर पाएगा। नेक्स्ट में अभी आपको उसके केमिकल्स के जैसे कि एक फ्लोरिंग लगाना है तो उसके लिए जो केमिकल है तो केमिकल के पार्ट्स
में क्या क्या हमको ध्यान में रखना होता है वो मैं आपको जस्ट समझाने जा रहा हूँ। अभी मैंने फ्लोरिंग और वाटर प्रूफिंग के बारे में इसमें इसमें बहुत सारी एक्टिविटी आती है, लेकिन मैं जस्ट आज आपको फ्लोरिंग और वाटर प्रूफिंग के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि ये सिविल इंडस्ट्री को भी ये चीज़ लागू पड़ती है और इंटीरियर इंडस्ट्री को भी लागू पड़ती है, तो दोनों के लिए यूजफुल हो जाएगा। अभी जैसे कि एक कंस्ट्रक्शन केमिकल जो हमको ध्यान में रखना है, वो केमिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और हमको लगाने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। अभी यहाँ पे आप जरा अपनी स्क्रीन जूम करके देखोगे तो यहाँ पे आपको लिखा है कि 25 kg, यानी इसका मतलब है वो 25 kg का बैग है। यहाँ पे सेल्फ लाइफ लिखा है 12 मंथ्स इन द ओरिजिनल, यानी इसकी लाइफ है जब से उसकी मैन्युफैक्चर डेट उसके 12 महीने तक आप इसको यूज कर सकते हो। बाद में लिखा है अडेसिव थिकनेस फ्रॉम 2 टू 15 mm, यानी आप ये केमिकल को 2 mm से 15 mm तक आप यूज कर सकते हो। आप सब जानते हो कि जब प्लास्टर होता है तो प्लास्टर के अंदर अंडुलेशन बहुत ज्यादा होता है, तो अंडुलेशन के हिसाब से कहीं पे 2 mm थिकनेस, कहीं पे 4 mm थिकनेस, कहीं पे 15 mm थिकनेस तक माल आ सकता है। तो आप 15 mm से जो ज़्यादा है तो आपको वापस प्लास्टर करवाना है, ये मटेरियल आप यूज़ नहीं कर सकते हो। आपको 2 से 15 mm की थिकनेस तक का अंडुलेशन है तब तक ही आप ये मटेरियल यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा है कवरेज पर थिकनेस 1.25 kg पर मीटर स्क्वायर, यानी आप जितनी थिकनेस ज़्यादा जाएगी मटेरियल और उतनी कॉस्ट आपको ज़्यादा जाएगी। तो आपको ये फैक्टर बहुत ही ध्यान में रखना है कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करो तब कि भाई मेरे कितनी थिकनेस में कितनी एवरेज में ये मटेरियल जा रहा है। बाद में लिखा है टेम्परेचर ऑफ द एयर सबस्ट्रेट्स एंड मटेरियल्स, यानी लिखा है +5 अंश सेल्सियस टू 35 अंश सेल्सियस। आप ये मटेरियल को +5 से 35 तक का टेम्परेचर हो तब तक यूज कर सकते हैं। अभी हालांकि एक प्रोजेक्ट हमारे वहाँ एक एग्जीक्यूट किया था, वहाँ पे जो नॉन टेक्निकल पर्सन ने वहाँ साइट एग्जीक्यूट की थी, तो क्या हुआ था, बाहर का टेम्परेचर यानी समर था, 40 डिग्री तक का टेम्परेचर था, और वहाँ पे उन्होंने ये केमिकल से अपनी टाइल्स लगा दी। अभी जब आप देख रहे हो कि टाइल्स का क्या स्पेसिफिकेशन में लिखा है कि +5 से 35 तक आप ये मटेरियल यूज कर सकते हो, लेकिन आपने 40 डिग्री पे यूज किया तो क्या होगा, थोड़े टाइम में वहाँ पे वो टाइल्स वहाँ से पूरी बॉडी बोलने लगी और निकलने लगी, तो यानी क्लाइंट का पैसा भी बिगड़ा, केमिकल का भी पैसा बिगड़ा और टाइल्स का भी पैसा बिगड़ा। अभी वहाँ पे जो टेक्निकल पर्सन होता तो स्पेसिफिकेशन चेक करता और स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो मटेरियल यूज करवाता। अभी नेक्स्ट लिखा है पोर्ट लाइफ एट +23 अंश सेल्सियस। जब 23 अंश सेल्सियस का टेम्परेचर है, पोर्ट लाइफ यानी क्या है कि जो बकेट आता है तो पाउडर फॉर्म में आता है, तो आप पोर्ट उसके अंदर पानी मिला के आप 8 आवर्स तक आप इसको 23 अंश सेल्सियस टेम्परेचर है तो इसको यूज कर सकते हो। और ओपन टाइप यानी आपने मटेरियल लगा दिया, जैसे कि टाइल्स या इटालियन के पीछे मटेरियल लगा दिया, तो वो 60 मिनट तक आप उसको वहाँ पे वो स्ट्रेंथ देगा अपनी, उसके बाद वो वहाँ स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगा। और जैसे वापस लिखा है ओपन टाइम है 35 सेल्सियस, वहाँ पे 20 मिनट, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका जो ये सेटिंग टाइम है वो कम हो जाएगा। बाद में टाइम रिक्वायर्ड अंटिल फुल्ली फ्रोस्ट प्रूफ, यानी फ्रॉम 5 अंश सेल्सियस टू -5 अंश सेल्सियस। आपने एप्लीकेशन कर दिया, केमिकल लगा दिया, टाइल्स चिपका दिया, अभी 8 घंटे तक वो जो टेम्परेचर है, जहाँ पे कोई क्या सर्टेन एरिया आप जानते हो इंडिया में ऐसे भी है कि वहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ही होता है, तो वहाँ 8 घंटे तक +5 से -5 अंश सेल्सियस टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। आपको ये फैक्टर ध्यान में रखना है, तो जाएगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बाद में फुट ट्रैफिक ग्राउटिंग ऑफ जॉइंट्स एट 5 अंश सेल्सियस, यानी प्रोडक्ट लगने के बाद जो अपने ग्राउटिंग के लिए या जॉइंट के लिए जो हम दो टाइल्स होता है, दो टाइल्स के बीच में हम लोग जॉइंट्स 4 mm स्पेसर या 6 mm का स्पेसर रखते हैं, और जॉइंट फिलिंग के लिए हम 5 घंटे के बाद यानी 50 आवर्स के बाद हम उसको जॉइंट भरने के लिए दे सकते हैं, और 23 अंश सेल्सियस पर 24 आवर्स के बाद उसको जॉइंट भरने के लिए दे सकते हैं। बाद में लिखा है वॉल पे, तो वॉल पे भी जैसे कि जॉइंट भरने के लिए 20 आवर्स और 15 आवर्स के बाद हम लोग अलाउ कर सकते हैं वो आके जॉइंट भरे। बाद में रेडी फॉर यूज एट 23 अंश सेल्सियस, जो जैसे कि भाई जो हमने फ्लोरिंग लगाया वो यूज करने के लिए कब देना है, तो भाई जहाँ ट्रैफिक कम है तो आप 2 से 3 दिन के बाद आप उसको यूज कर सकते हो, हेवी ट्रैफिक है तो 7 दिन के बाद, और स्विमिंग पूल है तो 14 दिन के बाद। अभी मैं नेक्स्ट एक्टिविटी लेता हूँ वाटर प्रूफिंग। नेक्स्ट प्लीज। जैसे मैंने फ्लोरिंग में आपको डिटेल में समझाया, अभी वाटर प्रूफिंग में बहुत ज़्यादा नॉन टेक्निकल पर्सन इसमें काम करने में एरर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है क्लाइंट सफ़र करता है और पानी का लीकेज होता है, और बाद में वो इतना सारा खर्चा होने के बाद भी वो लोग ढूंढते रह जाते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है। एक अभी जो दिख रहा है वो हमारी एक साइट का फोटोस है, ये हाई राइज प्रोजेक्ट की एक साइट है, और एक वहाँ एक संकन एरिया है, बाथरूम एरिया है, वहाँ संकन प्रोवाइड किया गया है और संकन एरिया का ये फोटोस है। तो सबसे पहला हमें जो वाटर प्रूफिंग करना है तो हमको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है,
उसकी जो आपको सरफेस पे जो डेब्रिस दिख रहा है उस सरफेस को क्लीन करना है और उसको मदर स्लैब तक क्लीन करना है, मदर स्लैब तक प्रॉपरली क्लीन करना है। जैसे मैंने आपको आगे बताया, प्लास्टर का माल भी स्लैब के ऊपर चिपका रहता है और आप उसको निकालोगे नहीं तो जो बॉन्डिंग आना चाहिए वो बॉन्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सेकंड टेस्ट आता है पॉन्ड टेस्ट, यानी एक मदर स्लेब आने के बाद हमको उसको पानी भर के प्रॉपरली टेस्ट करना है कि उसके अंदर कोई लीकेज तो नहीं है ना, जो लीकेज है तो कहाँ से है और उसके अंदर कोई क्रैक है या कॉर्नर पे से लीकेज हो रहा है, सेंटर में से लीकेज हो रहा है, वो सारे पॉइंट्स हमको पहले चेक करना है। क्योंकि आप सब जानते हो कि जो बॉडी सही नहीं होगा तो बॉडी के ऊपर चाहे कितने भी अच्छे आप कपड़े पहना लो वो कभी भी सही नहीं हो पाएगा। तो हमारा मदर स्लेब उसकी मदर बॉडी है, तो उसको पहले से हमको अच्छी तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे मैं आगे अभी दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, जैसे कि मदर स्लेब में कॉर्नर पे आपको एक करके उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना होता है, क्योंकि ज्यादातर केस में हम लोगों ने देखा है कि कॉर्नर से लीकेज ज्यादा होता है। तो कॉर्नर से हमको उसको कोई पर पॉलीमराइज बेस्ड वाटा या केमिकल यूज करके उसको वाटा बना के उसको ट्रीट करना होता है। और स्लेब में से क्रैक हो तो उसको ग्राउटिंग करके, नेक्स्ट, तो ग्राउटिंग करके जैसे आप फोटो में देख रहे हो उसको ग्राउटिंग करके और उसको क्रैक को आप सील कर सकते हो। यू सीलेंट हो सकता है, इपोक्सी बेस्ड सीलेंट हो सकता है, वो डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से अपने को डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल उसके अंदर यूज होता है और हमको सिलेक्ट करना रहता है। नेक्स्ट, कभी कोई बार ऐसा होता है कि क्रैक होता है, पूरा थ्रू आउट क्रैक होता है, तो उसमें हमको इंजेक्शन ग्राउटिंग करना पड़ता है। यहाँ पे आप फोटो में ज़्यादा जूम करके देखोगे तो नोजल यहाँ पे लगाई गई है, नोजल के द्वारा हम लोग इंजेक्शन करके ग्राउटिंग मटेरियल अप्लाई करते हैं और उस क्रैक को थ्रू आउट फिलअप करते हैं। ये हो गया मदर स्लेब को ट्रीटमेंट। पहले सबसे पहले मदर स्लेब को ट्रीटमेंट करना है। सेकेंड, अभी वाटर प्रूफिंग मटेरियल अप्लाई करना है। वाटर प्रूफिंग मटेरियल कैसे, उसको सिलेक्शन कैसे किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आपको अपना मटेरियल सिलेक्ट करना रहता है। अभी जो आपको फोटोज में दिख रहा है वो पॉलीइथिलीन प्रोपिलीन है। तो ये जो मटेरियल है एक पूरा, यानी जो फ्लोरिंग का आपका लेवल है, जो आपके रूम का लेवल, क्योंकि ये तो संकन एरिया है, आपका बाहर का रूम का लेवल उससे भी 2 फीट ऊपर तक आपको ये मटेरियल आपको यूज करना है और पूरा वाटर प्रूफिंग करके उसको एक बकेट की तरह बनाना है। नेक्स्ट, के बाद का आपका स्टेज आता है ड्रेनेज लाइन अप्लाई करना, कि जहाँ जहाँ पे आपकी एंटी का प्रोविजन दिया है, एक तो एंटी होती है, एक डब्ल्यूसी के लिए होती है, एक एंटी होती है सावर एरिया के लिए, तो एक एंटी बेसिन के लिए होती है। तो पूरा पाइपलाइन आपको बिछाना है अच्छी तरह से, उसको स्लोप के अंदर आपको बिछाना है। दूसरा, इसके अंदर एक मेजर पार्ट आता है, आपने वाटर प्रूफिंग तो कर दिया तो आप लोगों को लगता है कि पानी नीचे नहीं जाएगा। कोई भी वाटर प्रूफिंग मटेरियल 100% तब सिक्योर हो पाता है कि जब वो पूरा पानी से बचे, यानी कोई भी मटेरियल में पूरा पानी भर जाएगा और लंबे टाइम पर वो पानी पड़ा रहेगा तो वहाँ उसका जो जॉइंट्स होता है वहाँ पे जो ग्लू लगता है उसकी लाइफ खत्म, एक टाइम पे उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और वहाँ से लीकेज होना चालू हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि वो प्रॉब्लम नहीं आए, इसके लिए हमको एक सीपेज लाइन का प्रोविजन करना होता है। बहुत सारे लोग को इसके बारे में मालूम ही नहीं होता और बहुत सारे लोग ऐसे ही एग्जीक्यूशन करवाते हैं। इस सीपेज लाइन का क्या काम होता है, जैसे कि आपने सारी ट्रीटमेंट बता दी, आपका ऊपर फ्लोरिंग भी हो गया, लेकिन फ्लोरिंग से जो जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट में से पानी नीचे जाता है। अभी जो पानी नीचे जाएगा तो कहाँ आके रुकेगा, जहाँ पे आपने वाटर प्रूफिंग किया है वहां तक आके रुक जाएगा। अभी आप एक ग्लास का बीकर है, ग्लास के बीकर की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसके अंदर आप पानी डालोगे तो जब तक उसकी कैपेसिटी तब तक वो बीकर के अंदर पानी रहेगा, उसके बाद वो ओवरफ्लो के बाहर आएगा। सेम ऐसा यहाँ पे जो हमने वाटर प्रूफिंग किया है उस पर पानी भरेगा भरेगा, एक लेवल की इसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, बाद में क्या करेगा, जो अपना रूम से जो बाजू वाला सराउंडिंग जो रूम होगा रूम के अंदर ये पानी लीकेज होगा और अपने स्ट्रक्चर को डिटोरिएट करेगा। तो इसके लिए जो सीपेज लाइन डाली होगी तो क्या होगा कि वो पानी वहाँ जमा ही कभी नहीं होगा और सीपेज लाइन के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा। तो नहीं वाटर प्रूफिंग आपका डैमेज होगा, नहीं आपका स्ट्रक्चर बिगड़ेगा और नहीं जो आपने इंटीरियर में जो खर्चा किया वो कभी बिगड़ेगा। तो ये सीपेज लाइन बहुत ही अच्छी तरह से लेवल के हिसाब से, स्लोप के हिसाब से आपको डलवानी रहेगी। नेक्स्ट, इसके बाद हमको एंटी तक या सीपी लाइन तक जो स्लोप देना है वहां तक के लिए हमको रोड़ा, रोड़ा कोई वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन नहीं है, मटेरियल नहीं है, वो खाली स्लोप के लिए प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे लोगों को एक गैर समझ होती है कि जो ब्रिक बेड से वाटर प्रूफिंग का काम करता है, कभी ब्रिक बेड वाटर प्रूफिंग का काम नहीं करता, एक स्लोप, अच्छा स्लोप देने के लिए काम करता है। तो इसका हमने जो वाटर ब्रिक बेड को बिछाया वो सीपेज लाइन का जो स्लोप जहां हमको देना उसके हिसाब से पूरा उसको स्लोप में बिछाया है। नेक्स्ट, अभी जे इसको हम लोग सिंगल कोट करते हैं, उसके बाद हम वापस उसका क्योरिंग करेंगे। अभी क्योरिंग नहीं करेंगे यानी 6 से 7 दिन उसका क्योरिंग करेंगे। क्योरिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा, जब उसको सेकंड लेयर हम अप्लाई करेंगे तो सेकंड लेयर से ब्रिक का क्या नेचर होता है कि वो पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, जो सफिशिएंटली क्योर नहीं हुआ होगा तो ऊपर के लेयर से पानी खींचेगा और ऊपर के लेयर में वो क्रैक देगा।
तो इसलिए हमको उसको प्रॉपरली क्योर करना बहुत ही ज़रूरत है। सेकंड आएगा हमको सीमेंट मोटर का प्रपोर्शन करके उसका फाइनल वापस क्योरिंग करना है और उसको टेस्टिंग करना है कि भाई उसमें से कहीं लीकेज नहीं हो रहा है। तो ऐसी सारी सिस्टम से इतनी सारी एक्यूरेसी के साथ हमको कोई भी काम एग्जीक्यूट करवाना है। और आज आप समझ सकते हो कि क्लाइंट इतना पैसा डाल रहा है और इतने पैसे डालने के बाद उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्लाइंट क्या होगा? अपना क्लाइंट इसमें पैसा डालना बंद होगा तो अपनी फील्ड के लिए वो प्रॉब्लमेटिक है। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने के लिए एक टेक्निकल स्टाफ की बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। अभी बड़े जो प्रोजेक्ट है जैसे पीएमसी इंटीरियर प्रोजेक्ट में कैसे काम करती है उसके रिगार्डिंग मेरे साथ है मेरे कलीग चिंतन भाई, वो आपको पीएमसी के रिगार्डिंग डिटेल में समझाएंगे। चिंतन प्लीज। Thank you, Chirag bhai. Hello, friends, and respected all college faculties. Good morning. Myself, Chintan Vora. I am from Magnet Projects. आज मैं आपके साथ पीएमसी के रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल नॉलेज शेयर करूंगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स लेते हैं हम लोग, व्हाट इज पीएमसी। पीएमसी मीन्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। नेक्स्ट प्लीज। बेसिकली हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोजेक्ट, सेकंड वन इज मैनेजमेंट, थर्ड वन इज कंसल्टेंट। सबसे पहला है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, हॉस्पिटलिटी, हेल्थ केयर सेंटर, वेरियस थीम पार्क। तो ये सब प्रोजेक्ट्स के टाइप्स हो गए। उसके बाद में है सेकंड वन है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स जो भी प्रोजेक्ट है उसका प्रॉपरली प्लानिंग करना एंड उसका प्रॉपरली शेड्यूलिंग करना। एंड थर्ड वन कंसल्टेंट। कंसल्टेंट मीन्स एक प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन टीम है जो प्रोजेक्ट को कॉस्ट, क्वालिटी एंड टाइम ड्यूरेशन, ये सब फैक्टर को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के ऊपर अच्छा प्लानिंग करके उसके ऊपर वर्क करती है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की बेसिक डेफिनेशन। उसको मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में मैं बताऊं तो पीएमसी क्या है। पीएमसी क्लाइंट एंड डिफरेंट कंसल्टेंट है, उसके बीच में एक मीडिएटर पर्सन है जो प्रोजेक्ट को मार्केट में जो कन्वेंशनल मेथड से जो प्रोजेक्ट दूसरे लोग जो प्रोजेक्ट को रन करते हैं उससे डिफरेंट वे में, स्मूथ वे में प्रोजेक्ट को रन करती है। जैसे पीएमसी 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, उसका मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि जैसे आप ग्रोसरी शॉप में जाते हो तो आपको ग्रोसरी मिलती है, शूज के शोरूम में जाओगे तो आपको शूज मिलेंगे, कपड़े के शोरूम में जाओगे तो आपको कपड़े मिलेंगे, वेजिटेबल्स के शॉप पे जाओगे तो आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे। और जैसे आप आ जाते हो मेगा स्टोर के ऊपर, तो मेगा स्टोर हो गया 1 पॉइंट सॉल्यूशन कि जहाँ से टोटली आपको ये सब चीज का एक ही जगह से सॉल्यूशन मिलेगा। सेम वे में पीएमसी वर्क करती है। 1 पॉइंट सॉल्यूशन कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर फील्ड के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, तो वो पीएमसी के थ्रू आपको मिल सकती है। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई पीएमसी इज इम्पोर्टेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेटेजिक गोल ऑफ क्लाइंट। एवरी प्रोजेक्ट में क्लाइंट का एक स्ट्रेटेजिक गोल रहता है प्रोजेक्ट के ऊपर। वो प्रोजेक्ट का गोल अचीव करने के लिए पीएमसी उसके ऊपर कैसे वर्क करती है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। कि रिसेंटली हम लोगों ने सूरत में एक 10,000 स्क्वायर फीट का एक लग्जरियस फ्लैट हम लोगों ने कंप्लीट किया है। उसमें क्या हुआ था, इनिशियल स्टेज पे वो क्लाइंट का गोल था कि वो क्लाइंट को वो ड्रीम होम उनका 10 मंथ्स में कंप्लीट करना था, लेकिन 1.5 साल चला गया था। उसके बावजूद भी उसमें ओनली बेसिक एक्टिविटीज हुई थी। तो क्लाइंट टोटली फ्रस्ट्रेट हो गए थे एंड नर्वस हो गए थे। बाद में कहीं से क्लाइंट को हमारा पीएमसी का रेफरेंस मिला कि एज ए पीएमसी हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं। बाद में क्लाइंट ने हमें एज ए पीएमसी हायर किया एंड हायर करने के बाद विद इन 4 मंथ हम लोगों ने टोटल जो भी प्रोसेसिंग एक्टिविटीज जो प्रोजेक्ट में है वो कंप्लीट कर दी और वो प्रोजेक्ट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ 1.5 साल और कहाँ 4 मंथ। तो प्रोजेक्ट में क्लाइंट के स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए हम लोग उसके ऊपर वर्क करते हैं। सेकंड पॉइंट है इंश्योर टू डिजाइन द डिजाइनर। जैसे आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर प्रोजेक्ट में डिजाइन जो देती है वो पीएमसी इंश्योर करती है कि वो डिजाइन क्लाइंट की फ्रेम वे और कॉस्ट फ्रेम में सूटेबल है कि नहीं है। एंड थर्ड वन है टेक्निकल प्रॉब्लम। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके रिगार्डिंग पीएमसी उसके टेक्निकल बंदे के साथ में वो कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करती है उसका मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। कि रिसेंटली हम लोग एक टावर का रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं सूरत में। तो उसमें 1 साल पहले क्या हुआ था कि डायफ्राग्राम वॉल जो बोलते हैं वो कोलैप्स हो गई थी। क्यों? क्योंकि बिल्डर के पास टेक्निकल टीम नहीं थी, टेक्निकल एग्जीक्यूशन प्रॉपर जो हो रहा था वो टेक्निकल चेकिंग नहीं हो रही थी। तो उसके लिए बाद में क्लाइंट कंफ्यूज हो गए, सोसाइटी का प्रेशर था, एसएमसी का प्रेशर आ गया एंड बाद में प्रोजेक्ट क्लोज हो गया।
तो कहीं से बाद में क्लाइंट को हमारा रेफरेंस मिला और रेफरेंस बाद में हमें पीएमसी हायर किया एंड विद इन 10 मंथ हम लोगों ने फाउंडेशन से लेके सुपर स्ट्रक्चर तक का टोटली कंप्लीट वर्क हम लोगों ने कंप्लीट किया। ऑल सैंपल फ्लैट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए और अभी जो इनिशियल जो भी फ्लैट्स है उसमें टोटली इंटीरियर वर्क स्टार्ट हो गया है। तो आप समझ सकते हो कि प्रोजेक्ट में जो टेक्निकल टीम नहीं होगी तो कितना कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एंड टाइम पॉइंट ऑफ व्यू कितना क्लाइंट को नुकसान होगा। नेक्स्ट उसके बाद में है हाउ पीएमसी वर्क। तो उसमें है टाइम मैनेजमेंट। बेसिकली हम उसमें 4 प्रिंसिपल उसके ऊपर वर्क करते हैं। फर्स्ट वन टाइम मैनेजमेंट, सेकंड वन कॉस्ट मैनेजमेंट, थर्ड वन एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट एंड फोर्थ वन कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं उसके लिए इसके रिगार्डिंग थोड़ा मैं आपको डिटेल नॉलेज आपके साथ में ब्रीफली शेयर करूंगा। सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ये प्रोजेक्ट का एक मेन फैक्टर है। तो एज ए पीएमसी हम लोग इसके ऊपर कैसे वर्क करते हैं कि प्रोजेक्ट में जो भी स्पेसिफिक एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस होने वाली है उसको हम लोग स्पेसिफिक टाइम में डिवाइड करके उसका पूरा मास्टर शेड्यूल बनाते हैं इनिशियल स्टेज पे ऊपर। और वो शेड्यूल के हिसाब से टोटली मैनेजमेंट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि कंस्ट्रक्शन में हम लोग जैसे कंस्ट्रक्शन में लेते हैं तो एक्सकावेशन है, फुटिंग्स है, प्लिंथ है, स्लैब कास्टिंग है और इंटीरियर में सेम प्लम्बिंग वर्क, फ्लोरिंग वर्क, एसी वर्क, फर्नीचर वर्क। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज हो गई। तो उसके ऊपर हम लोग पीएमसी कैसे वर्क करते हैं एवरी वीक नेक्स्ट वीक का प्लानिंग हम लोग जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट वीक के प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूड रहता है कि उसमें नेक्स्ट वीक में एजेंसी को कौन सा वर्क करना है और कितने टाइम में वो वर्क कंप्लीट करना है वो उसमें इंक्लूड रहता है। बाद में आर्किटेक्ट के पास से हमें कौन सा प्लानिंग लेना है वो उसमें इंक्लूड रहता है। एंड क्लाइंट क्लाइंट के पास से कौन सा अप्रूवल लेना है और कौन सा सिलेक्शन करना है वो सब उसमें इंक्लूड रहता है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि जो भी वर्क साइकिल है वो स्मूथली रन करेगी। जो भी वर्क हो रहा है वो एज पर मास्टर शेड्यूल हम लोगों ने जो बनाया उसके ऊपर वर्क करेगा। जो भी वर्क हो रहा है उसमें बेटर क्वालिटी हमें प्रोवाइड होगी, लेस स्ट्रेस होगा, रिक्रिएशन के लिए हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा एंड शॉर्ट टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हम लोग दे पाएंगे। तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट। अभी नेक्स्ट है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कॉस्ट मैनेजमेंट के ऊपर एज ए पीएम से हम लोग कैसे वर्क करते हैं। तो कॉस्ट, तो कोई भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट एक मेन पार्ट है। आप देख लो कोई भी प्रोजेक्ट का एक स्पेसिफिक बजट होगा तो उस स्पेसिफिक बजट में हम लोग कैसे वर्क करते हैं उसके ऊपर वो आपको मेन 3 पार्ट्स है। सबसे पहले जो प्रोजेक्ट में जो भी मटेरियल आता है उसमें रेट नेगोशिएशन करते हैं हम लोग। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसके जान के उसका स्पेसिफिक हम लोग चार्ट बनाते हैं, उसमें रेट एनालिसिस करते हैं और रेट एनालिसिस करने के बाद डिफरेंट वेंडर के पास से हम लोग जो भी मटेरियल लेते हैं उसमें नेगोशिएशन करते हैं रेट में। उसके बाद में एजेंसीज के कोर्ट में सेकंड वन एजेंसीज के कोर्ट जो होते हैं इनिशियल स्टेज पे जो भी प्रोजेक्ट में एजेंसीज वर्क करने वाली है उसके कोटेशन में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन हम लोग जस्टिफाई करके उसके कोटेशन में नेगोशिएशन करते हैं। एंड थर्ड वन है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बहुत सारा मटेरियल वेस्टेज होता है तो मटेरियल वेस्टेज कंट्रोल करके हम लोग उसमें कॉस्ट बेनिफिट करवाते हैं क्लाइंट को। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आज से 3 साल पहले हम लोगों ने सूरत में 550 बार एक बंगलों में क्या हुआ, काम कंप्लीट होने के बाद कलर एजेंसी ने उनका बिल रखा तो उनका बिल था 65 लाख रुपीज का। तो क्लाइंट कंफ्यूज हो गए और क्लाइंट ने वो बिल एज अ पीएम से हमें चेक करने के लिए दिया। तो वो कलर एजेंसी का हम लोगों ने इनिशियल स्टेज पे जो भी कोटेशन हम लोगों ने जस्टिफाई किया था उसमें टर्म्स एंड कंडीशन टोटली हम लोगों ने सेग्रीगेट कर दिए थे। तो बाद में हम लोगों ने ऐसे पीएमसी वो बिल चेक किया तो वो बिल 65 लाख रुपीज का सीधा आ गया 45 लाख रुपीज के ऊपर। तो आप समझ सकते हो कि जो एजेंसीज के कोर्ट में इनिशियल लेवल पे टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर्ली क्लासीफाई नहीं होगा तो क्लाइंट को कितना बड़ा लॉस होने का चांसेस है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और सेम प्रोजेक्ट में एज अ होम थिएटर में आर्किटेक्ट ने डिजाइन दी थी। तो डिजाइन में टोटली 18,000 वुडन स्टिक एकोस्टिक पर्पज से वो क्लाइंट ने आर्किटेक्ट ने डिजाइन दी थी। तो क्लाइंट एंड आर्किटेक्ट ने वो वुडन स्टिक का मार्केट में से सर्वे किया एंड प्राइस निकाला तो वो 35 रुपीज पर स्टिक थी। और बाद में एज ए पीएमसी हम लोगों ने वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वुड के जान के हम लोगों ने मार्केट में से सर्वे किया और वो वुडन स्टिक हम लोगों लाए 25 रुपीज में। तो एट द टाइम हम लोगों ने क्लाइंट को 1,80,000 रुपये का फायदा करवाया था। तो आप समझ सकते हो कि छोटी छोटी चीज इंटीरियर पार्ट में और कंस्ट्रक्शन पार्ट में बहुत सारी आती है, बहुत सारा मटेरियल आता है। तो आप उसमें स्पेसिफिक मार्केट सर्वे नहीं करोगे तो आपको कितना कॉस्ट प्रॉब्लम आएगा प्रोजेक्ट में। उसके बाद में है एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट। तो एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट एज ए पीएम से हम लोग कैसे वर्क करते हैं तो उसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, ऑफिस स्टाफ एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर का रोल क्या है प्रोजेक्ट में? तो वो फुल टाइम इंजीनियर साइट पे रह के मॉर्निंग एंड इवनिंग का रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं, एजेंसी को गाइड करते हैं कि एजेंसी आपको कैसे काम करना है ड्राइंग के ऊपर। जो ड्राइंग आते हैं आर्किटेक्ट नहीं तो इंटीरियर डिजाइनर के पास से, तो वो एजेंसी को गाइड करते हैं, एजेंसी को समझाते हैं टोटली। उसके बाद में जो भी मटेरियल आता है प्रोजेक्ट में उसको प्रॉपरली क्वालिटी चेक करते हैं। ऑन साइट के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, वो मेंटेन करते हैं एंड वर्क क्वालिटी चेक करते हैं। वर्क क्वालिटी चेक करना इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्क सामने से दिख रहा है वो अच्छा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। उसको जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में, मैं आपको बात करूँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये कंस्ट्रक्शन फील्ड में हम लोग जैसे आरसीसी कॉलम कास्टिंग करते हैं, तो आरसीसी कॉलम कास्टिंग करने से पहले हमें कितने कितने पॉइंट्स चेक करने पड़ते हैं। कि सबसे पहले जो कॉलम का शटरिंग करते हैं तो उसकी साइज चेक करनी है, उसका डायगोनल चेक करना है, उसका प्लम चेक करना है। बाद में एडजस्टमेंट कॉलम के साथ में उसका ड्राइंग के हिसाब से क्रॉस चेक करना है, डिस्टेंस क्रॉस चेक हमें करना है। बाद में जो शटरिंग मटेरियल है उसके ऊपर प्रॉपर ऑयलिंग हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। बाद में शटरिंग के ऊपर प्रॉपर सिकंजा जो एमएस क्लैम्प बोलते हैं वो प्रॉपर इंटरवल के ऊपर जो भी एजेंसी काम कर रही है उसने लगाया हुआ है कि नहीं वो चेक करना है। बाद में कंक्रीट का ग्रेड चेक करना है, रेनफोर्समेंट चेक करना है। बाद में कंक्रीटिंग कौन से लेवल तक करना है वो चेक करना है। और कंक्रीटिंग होने के बाद जब हम लोग उसका डी शटरिंग करते हैं तो डी शटरिंग 24 आवर्स के बाद हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। और डी शटरिंग होने के बाद उसका प्रॉपर क्योरिंग हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। तो आप समझ सकते हो कि एक्टिविटीज एक सिंगल है, सिंगल एक्टिविटीज है आरसीसी कॉलम, लेकिन इसमें कितने सारे पॉइंट्स हमें चेक करने पड़ते हैं तब जाके हमें वर्क क्वालिटी अच्छी मिल सकती है। और सेम पार्ट में इंटीरियर पार्ट में लेते हैं हम लोग कि प्लम्बिंग। तो जैसे हम लोग कोई भी एक बाथरूम बना रहे हैं तो उसमें प्रॉपर वाटर प्रूफिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। बाद में वाटर प्रूफिंग होने के बाद में हम लोग जो भी पाइपिंग इनले कर रहे हैं तो पाइपिंग का ग्रेड कौन सा है, उसकी कंपनी कौन सी है, उसकी थिकनेस क्या है, वो सब हमें चेक करना है। बाद में उसमें एजेंसीज में नंबर ऑफ पेंट्स ज़्यादा नहीं लगा है वो चेक करना है। जो नंबर ऑफ पेंट्स ज़्यादा हो गए तो वाटर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बाद में शावर एरिया में जो भी हम लोग बॉडी जेट या डाइवर्टर लगा रहे हैं उसका सेंटर चेक करना है, उसकी हाइट चेक करनी है। तो ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज के। एक एक्टिविटीज मेन एक्टिविटीज हो गई प्लम्बिंग, बाथरूम हमें कंप्लीट करना है, लेकिन उसमें सब एक्टिविटीज कितनी सारी है तो वो सब सब एक्टिविटीज हमें प्रॉपरली चेक करनी पड़ती है, तब जाके हमें वर्क क्वालिटी अच्छी मिलेगी। ये हो गया जूनियर इंजीनियर का रोल। उसके बाद में नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर। तो सीनियर इंजीनियर क्या करते हैं कि आर्किटेक्ट, क्लाइंट्स एंड डिफरेंट कंसल्टेंट के साथ में मीटिंग करनी है। बाद में जो फ्यूचर एक्टिविटीज होने वाली है प्रोजेक्ट में उसका प्रॉपर्ली प्री प्लानिंग करना है। बाद में जो भी वर्क हो रहा है वो शेड्यूल के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, टाइम पे हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। बाद में ऑन साइट के ऊपर जो भी मटेरियल आ रहा है उसका प्रॉपरली मटेरियल एनालिसिस करके उसका प्रॉपरली रेट कंपेरिजन शीट रेडी करनी है। और जो भी इंजीनियर है उसको वीकली एक जॉइंट मीटिंग करते हैं। वो किसके लिए? कि जूनियर इंजीनियर को मोटिवेट एंड टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए। एंड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जितने सारे टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं वो सीनियर इंजीनियर वो सॉल्व करते हैं। एंड मेन पार्ट है कि ड्राइंग चेकिंग। ड्राइंग चेकिंग क्या करते हैं कि जो भी आर्किटेक्ट या डिजाइनर के पास से ड्राइंग आता है वो ऑन साइट के ऊपर प्रॉपरली चेक करते हैं, उसका मेजरमेंट चेक करते हैं, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चेक करते हैं। उसका मैं एक आपको एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा। जैसे दो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने इनिशियल लेवल से पीएमसी हायर किए और एक प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने कोई भी ऑफिस स्टाफ नहीं तो इनिशियल लेवल का जो भी फ्रेशर इंजीनियर है वो रखा हुआ है। तो वो फ्रेशर इंजीनियर क्या करेगा कि आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर जो भी ड्राइंग देंगे वो ऑफिस से लाके एजेंसी को सबमिट करवा देगा और एजेंसी को बोलेगा इसके हिसाब से आप वर्क स्टार्ट कर दो। तो वहाँ क्या होगा कि मिड लेवल पे आके पता चलेगा कि जो ड्राइंग है वो ऑन साइट के ऊपर मेजरमेंट के हिसाब से सेट नहीं हो रहा है, नहीं तो डिजाइनिंग जो भी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो क्लाइंट का प्रैक्टिकल पॉइंट था वो सेट नहीं हो रहा है। तो बाद में क्या होगा, मिड लेवल पे जो भी वर्क हो रहा है वो टोटली ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसमें टाइम एंड कॉस्ट दोनों हमारे लॉस हो गए। और एज ए सीनियर इंजीनियर और एज ए पीएमसी हम लोग कैसे वर्क करते हैं कि जो भी ड्राइंग्स लाते हैं हम लोग तो एजेंसी की हेल्प लेके हम लोग ऑन साइट के ऊपर टोटली उसका मार्किंग करवाते हैं, उसका मेजरमेंट चेक करते हैं। और क्लाइंट को हम लोग चेक करवाते हैं कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ओके है कि नहीं है, उसमें कुछ भी रेक्टिफाई होगा तो हम लोग वो ड्राइंग लेके वापस आर्किटेक्ट के ऑफिस पे जाते हैं। आर्किटेक्ट से टोटली वो ड्राइंग रेक्टिफाई करवा के वापस मार्किंग करके क्लाइंट को वापस चेक करवा के हम लोग क्लाइंट का फाइनल अप्रूवल आ जाता है, उसके बाद वो वर्क हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये हो गया, ये आपको पता चलता है कि एज ए पीएमसी एंड विदाउट पीएमसी क्या आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस है प्रोजेक्ट में। और नेक्स्ट है अभी ऑफिस स्टाफ। तो ऑफिस स्टाफ क्या करते हैं कि इनिशियल लेवल पे जो भी मास्टर शेड्यूल बनाना है वो बनाते हैं।
बाद में वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट जो इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट के टोटली एक मास्टर शेड्यूल फाइल बनाते हैं। तो उसमें कौन से डेटा इंक्लूड रहते हैं कि सर्विस एंड यूटिलिटी ड्राइंग्स उसमें इंक्लूड रहते हैं, ऑल एजेंसीज, वेंडर्स एंड कंसल्टेंट के कॉन्टैक्ट नंबर इसमें इंक्लूड रहते हैं, ऑल अप्लायंसेस के जो भी मशीनरी लगी हुई है उसकी परचेज डेट क्या है, उसका रेट क्या है, उसकी वैलिडिटी पीरियड क्या है, वो उसमें मेंशन रहता है। ऑल एजेंसीज के एएमसी कॉन्ट्रैक्ट उसमें मेंशन रहते हैं। एंड तो उसमें फाइनल साइट फोटोग्राफ्स उसके 3D फोटोग्राफ्स के साथ में, और जो भी सर्विस एंड यूटिलिटी पार्ट्स है उसकी टोटली वीडियोग्राफी उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो ये हो गया ऑफिस स्टाफ का रोल। एंड फाइनल है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट क्या करते हैं? मेन हो गया ह्यूमन रिसोर्स, कि नए नए इंजीनियर को हायर करना है, बाद में नए नए क्लाइंट, नए नए आर्किटेक्ट के साथ में मीटिंग करनी है, जो भी टीम है उनको मोटिवेट करनी है, और जो भी जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, ऑफिस स्टाफ जो भी वर्क कर रहे हैं वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करते हैं। तो ये हो गया मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का रोल। अभी फोर्थ है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट मीन्स क्या है? उसका मेन पर्पस है कि जो भी प्रोजेक्ट में प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज हो रही है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना एंड उसको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करना। जैसे कोऑर्डिनेशन में क्या है? आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, एजेंसीज, वेंडर्स, क्लाइंट्स को सबके साथ में रेगुलरली कोऑर्डिनेशन करना। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज मस्ट रिक्वायर्ड इन प्रोजेक्ट। क्यों? उससे क्या बेनिफिट होगा? जो भी वर्क एरर है वो रिड्यूस हो जाएगी, वर्क एक्टिविटीज है उसमें स्पीड आएगी, प्रॉपर वर्क अलाइनमेंट मिलेगा, जो भी प्रोजेक्ट का गोल है वो अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। एंड ऑर्गेनाइजेशनशिप में जो रिलेशनशिप है डिफरेंट क्लाइंट के साथ में, आर्किटेक्ट के साथ में, कंसल्टेंट के साथ में, वो इम्प्रूव होगी। तो ये हो गया हाउ पीएमसी वर्क, मीन टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम फेस विदाउट पीएमसी। तो सबसे पहला पॉइंट है लेक ऑफ प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। उसकी वजह से क्या होगा? प्रोजेक्ट डिले होगा, क्योंकि आपका प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगा और प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या हो रहा है। सेकंड वन, लेक ऑफ नॉलेज एंड साइट सुपरविजन। तो उससे क्या होगा? जो प्रॉपर बंदा नहीं होगा, प्रॉपर इंजीनियर जिसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा, तो उसमें जो भी वर्क हो रहा है उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाद में है थर्ड वन, लेक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जो डॉक्यूमेंटेशन मीन्स रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट का जो भी प्रोग्रेस हो रहा है वो प्रॉपर फाउंड नहीं कर पाएंगे हम लोग, उसमें डिफिकल्टी होगी। बाद में मटेरियल ऑर्डर देने में हमें प्रॉब्लम आएगा, ऑल ओवर जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ती जाएगी। उसके बाद में हाउ टू कैरी आउट द वर्क ऑन साइट एज ए पीएमसी। जैसे चिराग भाई ने आपको बताया कि टोटली जो भी एक्टिविटीज होती है उससे हमारे पास चेकलिस्ट रहती है, वो हम लोग इंजीनियर को प्रोवाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है? उसको पता रहता है कि भाई कौन सी एक्टिविटीज पहले करनी है एंड कौन सी एक्टिविटीज बाद में करनी है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस वर्क। ये मेन पार्ट है कि जो भी प्रोजेक्ट में सर्विस एंड यूटिलिटी पार्ट्स है जैसे इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग, एसी, तो उसको मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि एज ए पीएमसी हम लोग उसका इनिशियल स्टेज पे जो भी वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जो वर्क एग्जीक्यूट हुआ है साइट पे ऊपर, तो उसका हम लोग ड्राइंग बनाते हैं पीएमसी की टीम। तो उसका मैं आपको एग्जांपल थ्रू समझाऊंगा कि जैसे कंसील पाइपिंग हम लोग ले लेते हैं कि प्लम्बिंग पार्ट, कि कोई भी बाथरूम हम लोगों ने बनाया तो उसमें कंसील पाइपिंग हम लोगों ने कर दिया, वाटरप्रूफिंग कर दिया, इलेक्ट्रिक का क्लेडिंग कर दिया, इलेक्ट्रिक का जंक्शन जंक्शन बॉक्स हम लोगों ने डाल दिए, उसके बाद में हम लोगों ने क्लेडिंग मटेरियल कर दिया। आफ्टर ऑल टाइम हमें कहीं पे भी ड्रिल करने की रिक्वायरमेंट होगी, कहीं पे सेल्फ लगाना है बाथरूम में, कहीं पे मिरर लगाना है, और जो हमारे पास वो सर्विस एंड यूटिलिटी ड्राइंग्स प्लम्बिंग के नहीं होंगे तो वो जो बंदा होगा वो गलत जगह पे जो ड्रिल कर देगा तो पीछे की प्लम्बिंग लाइन डैमेज हो जाएगी और उसकी वजह से आपका लीकेज होगा, और लीकेज होने के बाद में आपको वो पूरा बाथरूम आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि मेंटेनेंस पार्ट ये कितना इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में है प्रॉपर रिपोर्टिंग। नॉट प्रॉपर रिपोर्टिंग, जैसे कोई भी बंदा होगा तो आपको डे टू डे, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट जो जनरेट करना है आपके पास आना है, आपके ऊपर टेबल के ऊपर कि आपको पता चलेगा कि भाई प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या हो रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा। सॉरी, उसके बाद में सेफ्टी ऑफ वर्क। जैसे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर काम करते हैं, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे। बाद में लेक ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉपर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे मार्केट में, बहुत सारे जो भी मटेरियल है, जो भी एजेंसीज है, एज ए पीएमसी हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं। एंड बाद में है हाई रिस्क ऑफ वर्क। तो ये क्या है? मेन है कि जो भी बंदा वहाँ पे काम कर रहा है, जो भी इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहा है, उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा
तो वो वर्क को प्रॉपर एनालाइज नहीं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वर्क कौन से स्टेज पे हमें कैसे करवाना है। तो ये हो गया प्रॉब्लम फेस विदाउट पीएमसी। ये प्रोजेक्ट में पीएमसी नहीं होगी तो कितने कितने प्रॉब्लम आने के चांसेस है। नेक्स्ट नेक्स्ट है हाउ टू डेवलप इंटीरियर नॉलेज। जैसे थियोरिकल नॉलेज हमें स्कूल कॉलेजेस में वो सब में हमें मिलता ही है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज थियोरिकल नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो हमें कब मिलेगा? ड्यूरिंग साइट एग्जीक्यूशन। जितना साइट एग्जीक्यूशन हमारा ज़्यादा होगा, जितना फील्ड वर्क ज़्यादा होगा, इतना ही हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होगा। तो उसके लिए नेक्स्ट एज ए पीएमसी हम लोगों ने मैग्नेट एजुकेशन सेंटर स्टार्ट किया हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने ये कोर्सेज को ये स्टार्ट करने का हमारा मोटो क्या है कि जो भी इंजीनियर्स है, जो सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर जो भी स्टडी कंप्लीट करके फील्ड में आ रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, तो उनके पास थियोरिकल नॉलेज रहता है, लेकिन इनिशियल स्टेज का जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा, तो जब वो वर्क एग्जीक्यूट करेंगे इनिशियल स्टेज का, तो उनको बेनिफिट होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने दो कोर्सेज हम लोगों ने डिवाइड किए हैं। सबसे पहले 3 मंथ्स का है, उसमें 120 आवर्स है। उसमें से 100 आवर्स प्रैक्टिकल सेशन है एंड 20 आवर्स थियोरिकल सेशन है, और उसकी फीस है 18,999। एंड सेकंड वन है 30 आवर्स का ऑनलाइन कोर्सेज है, उसकी फीस है 1,999। नेक्स्ट यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकोगे कि सूरत में हम लोगों ने जो भी इंटीरियर प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, उसके सम फोटोग्राफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले सेलेस्टियल ड्रीम का 16 फ्लोर का बिल्डिंग है, उसमें लिविंग रूम का फोटो है। सेकंड वन स्पाइस विला करके होटल है डुमस रोड पे, उसका फोटो है। थर्ड वन निरंजन देसाई करके सीए है, उनका 3 स्टोरी बंगलो है, उनका फोटो है। एंड फोर्थ वन लोसम में एक होम थिएटर हम लोगों ने फ्लैट में बनाया हुआ है, उसका फोटो है। तो ये फोटो के ऊपर से आप देख सकते हो कि जो भी मॉडर्न टोन है, जो भी क्लाइंट्स है, वो कितनी लग्जरी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो उसकी वजह से इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू आपको एग्जीक्यूशन पार्ट में कितना आगे स्कोप ऑफ वर्क है आपको फ्यूचर में, तो आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट ये हम लोगों ने रिसेंटली ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, सिविल प्रोजेक्ट। सबसे पहला है ग्रीन वैली है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है 8 टावर का। सेकंड वन रूम का सिग्नेचर है, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। एंड थर्ड वन केएसबी ओलंपिया, वो भी कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट ये हमारे सम वैल्यूएबल क्लाइंट्स है कि जिसके साथ में हम लोग रेगुलरली पीएमसी की सर्विस हम लोग उनको दे रहे हैं। रूम का डेवलपर्स है आरएनबी डायनेम्स, विनियर पॉइंट, दागिना ज्वेलर्स, डीएमडी ग्रुप, लग्जरिया ग्रुप, शुभ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड, अल्टा विशा लिविंग। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं सूरत में और पैन और इंडिया के, जहाँ पे हम लोग रेगुलरली पीएमसी सर्विस इनको हम लोग उनके प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। नेक्स्ट तो गाइज यहाँ पे आज का सेशन हमारा पीएमसी का जो भी अपॉर्चुनिटीज ऑफ सिविल इंजीनियर्स इन इंटीरियर फील्ड, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। तो उसमें आप देख सकते हो कि इनिशियल स्टेज पे सिविल वर्क, इंटीरियर वर्क, एग्जीक्यूशन एंड पीएमसी, इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9725414139। एंड सेकंड वन 8866333268। एंड हमारा ईमेल एड्रेस है themagnetprojects@gmail.com। एंड सोशल मीडिया पे भी हमारे पेजेस अवेलेबल है, तो आप कभी भी हमें फॉलो कर सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हो ऑनलाइन। थैंक यू गाइस। दर्शन सर, किसी को भी रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन हो तो अभी क्वेश्चन आंसर राउंड है, पूछ सकते हेलो। हैं। हाँ सर। हाँ, सो थैंक यू जैविक भाई, चिराग भाई, कृणाल भाई, for this wonderful session. We have two to three questions in the chat box. So first question is from Dr. Neeraj Sharma sir, principal of GIDC Engineering College, Degree Engineering College, Navsari. He having the question that is interior design and interior planning words are used as interchange word or different aspects? How? सर हाँ हाँ बोलो। ये जो क्वेश्चन है मैं वापस आप दोहराएंगे? हाँ, is interior design and interior planning words are used as interchange words or different aspects? It's different aspects. Huh? Different aspects. Okay, so it is used Designing for and planning
प्लानिंग दो सेंस में हो सकता है, डिजाइनिंग Okay. रिलेटेड भी प्लानिंग हो सकता है और एग्जीक्यूशन रिलेटेड प्लानिंग हो सकता है, Okay. लेकिन अभी जो भी सब्जेक्ट होगा उसके रिगार्डिंग ये होगा। Okay. The next question is, how is the scope of interior design for civil engineers parallelly with the core fields like structural work, PMC, etc.? हाँ, वो बहुत ही अच्छी तरह से ये लोग इंटीरियर फील्ड में काम कर सकते हैं, एज अ डिजाइनर भी काम कर सकते हैं और जैसे मैंने बताया एज ए एग्जीक्यूशन फील्ड में भी वो लोग काम कर सकते हैं। एज ए एजुकेशन फील्ड में वो एज अ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और या पीएम एज अ पीएमसी दोनों तरह से काम कर सकते हैं। डिजाइनिंग में काम करना है तो उनको बहुत सारे कोर्स भी अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारी इंस्टीट्यूट इस टाइप के कोर्स भी चलाती है। एग्जीक्यूशन के लिए नॉलेज लेना है तो उनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो फील्ड ट्रेनिंग ले या तो फिर कोई जैसे हम लोग फील्ड ट्रेनिंग के क्लासेस करवाते हैं उसमें वो लोग पार्टिसिपेट हो। Do we need to do any specific courses for interior design? यस, इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स चलवाती है। तो आपको इंस्टीट्यूट में वो कोर्स आपको करना है, डिजाइनिंग का नॉलेज तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, Okay, so लेकिन I think एग्जीक्यूशन का नॉलेज जैसे मैंने बताया आपको कि वो दो ही तरह से मिलता है, एक साइट एक्सपीरियंस से, फील्ड वर्क से, या तो इस टाइप के जो फील्ड ट्रेनिंग के कोर्स चलाते हैं तो आपको करना पड़ेगा। okay. So I think Chirag bhai, all the questions are covered. Now I would like to ask any participant if they want to ask directly to you. So any participant, यस, if you want to अभी मैं ask इसकी anything, लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, सारे पार्टिसिपेंट क्विज अटेंड करेंगे तो हमारी कंपनी से उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। now from the magnet projects, they are going to share one quiz link. So I request each participant please share the please appear for the quiz, and after giving the quiz you will receive one e-certificate from the magnet project team, means magnet project group. This is a separate certificate which is provided by magnet group. So the link is shared by Mr. Dingat Akhani. So it is requested all the participants please go through and appear for the quiz. Then afterwards I will share the attendance link for today's session. अभी जनरली हम लोग फील्ड ट्रेनिंग का भी कोर्स चलवाते हैं, Okay. और लोग कोई पीएमसी का बिजनेस करना चाहता है, उसमें इंटरेस्टेड है, तो हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म भी खोल डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में खोल रहे हैं। Okay. इसके रिगार्डिंग किसी को भी इंटरेस्ट हो तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। Kunal Prajapati from Magnet team, student of Sashid. Okay. Sir, can you going to share the PPT, as many participants are asking that are you going to share PPT? सर वो मैं एक बार देख लेता हूँ, बाद में आपको मेल पे शेयर कर दूंगा। Okay, fine, 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 fine. किसी को कोई क्वेश्चन है तो फिर No, maybe right now they are no, maybe they are up here for the quiz, the link which is shared by from your team, and I think there is no question in the chat box. So any participant would like to share anything or want to ask anything to Magnet team members, then you are free to unmute yourself and you can ask the question directly to the speaker. Which material can be used for expansion joint leakage? One question. तो मार्केट ये डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन है, और एक्सपेंशन जॉइंट के लिए बहुत सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल भी है। ये सब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो जाएगी, आपको
प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट स्टडी करना पड़ेगा, कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ पे यूज़ करना है। जैसे कि लैंडस्केपिंग एरिया है, फ्लोरिंग के अंदर आ रहा है, तो इस तरह से मैं पर्टिकुलर गाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। What is the use of PMC? पीएमसी इज बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस, और ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट का कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी वर्क करवाने के लिए ज़रूरत कॉस्ट, टाइम और क्वालिटी में काम करवाने के लिए रिक्वायरमेंट होती Okay, okay. So I think all the questions covered. So I hope all the participants had appeared for the quiz and maybe they had submitted also. So now I request participants to give your valuable views regarding this today's talk. If your quiz is completed, please write yes in the chat box. Which link? हेलो Yes. सर, जो एक्सपांशन जोइट का जिसने क्वेश्चन पूछा है, वो जो डिटेल में मुझे शेयर करे कि भाई कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, तो मैं उनको गाइड कर सकता हूँ। ऐसा है तो डिटेल में जो उनको जानना है तो पर्सनल मुझे कॉल कर सकते हैं, या अभी पूछना है Sir, तो खाली मुझे पर्पस। I will share your contact number and email ID to all the participants. Right now, he has just asked that which material can be used for expansion joint leakage. क्या है, क्या ये प्रोडक्ट का नाम है ना, हर एक कंपनी में अलग अलग होता है। जैसे कोई कंपनी में कैंपर V2104, उसकी थिकनेस पे डिपेंड्स होता है, अप टू 30 mm कुछ अलग मटेरियल यूज होता है, अप टू 50 mm अलग मटेरियल यूज होता है। तो डिपेंड्स है, मैं अभी कुछ नाम दे दूंगा और उनके लिए कुछ वो सोच लेंगे कि ना यही फाइनल है, बाद में क्लाइंट को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मुझे वो जानना पड़ेगा कि एक्चुअली बेसिक पर्पस कहाँ है, कहाँ यूज होने वाला है, और क्या थिकनेस में एक्सपेंशन जो। जनरली पॉलीसल्फाइड विथ इपॉक्सी एडेसिव होता है। Okay. हेलो। So the question which is asked by the question which is related to this expansion joint leakage, it is asked by Dr. Ghanshyam Savalia sir. He is assistant professor in Government Engineering College Palanpur. ओके, नो प्रॉब्लम। So just he wrote the message in the chat box that he will contact you personally regarding the same. ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। So almost many participants had appeared and completed the quiz. So now I'm sharing the attendance link for today's session. Already I instructed yesterday in the WhatsApp group. So similarly, as per yesterday, you have to do the same thing. So Chirag bhai, on behalf of Civil Engineering Department and all the participants, I would like to thank all your team members, Magnet Project Group team members, for delivering this wonderful and interactive session. Participant had already enjoyed, and their comment is also they put the comment in the chat box about
such a wonderful and informative session. And if any of the participants won't be able to ask any kind of question or any doubt, so I will share your contact details and the email ID so that they can contact directly to you. So once again, on behalf of all the participants and our institute and also Indian Society for Technical Education, I would like to thank all the team members of Magnet Project Group for sparing your valuable time in this lockdown period. So thank you once again, Chirag Bhai, Jaivik Bhai, Darshan sir. then Krunal Prajapati, and one more, I forgot his Janta name. Khadi. Uh, Thank you, Darshan sir. Thank you so much Vigat Akhani Sahib. giving this nice opportunity. Thanks, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. All the participants are requested, please fill the attendance link which is already shared in the in your chat box. Once again, I am sharing. Can we left? Yes, sir. Okay, fine. Thank you, Chirag bhai. Thank you, sir. Hello. Good morning. Good morning. Okay, those who have completed, please, you are free to leave the meeting. We will meet tomorrow, same time, 10:30. We have the session of environmental theme, environmental audit and compliance with various case studies from Dr. Meenakshi Wagani from SCAT College. And this quiz is apart from our symposium, the company, wherever they are going to deliver any kind of lecture to any institute, basically they are taking such type of quiz.
Yes, okay. If you had finished with the quiz and the attendance, you can leave. So now I am ending this meeting. So we will meet tomorrow. Thank you for your kind presence.